हम लोगों का सभी का पुनः स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर नॉर्थ जोन के चेयरमैन श्री असीम जफर जी से कि वो आए एंड गिव हिज वेलकम एड्रेस एंड ओपनिंग रिमार्क्स। असीम जफर जी। Thank you to all. Good evening to all. I welcome National Past President AIFTP Shri Ganesh Purohit ji, respected Arvind Gupta ji, Vikram Chawla ji, A.K. Srivastava ji, D.K. Gandhi ji, and all the office bearers of UP Tax Bar Association and the AIFTP to this very important and educative webinar on the most contemporary topic, faceless scrutiny, assessment and appeal under Income Tax Act by most prominent speaker Mr. Rajesh Mehta ji from Indore. I invite National Past President Ganesh Purohit ji to formally inaugurate the webinar. I also welcome all the respected professional friends to the webinar. Over to National Past President Ganesh Purohit ji. Thank you, Asim bhai. I am audible? Yes. Yes, very well, sir. North Zone President Shri Asim Zafar Sahab, Puneet Singh ji, Secretary North Zone, and Vikram Chawla ji, Coordinator for this program, Rajesh Mehta ji, Speaker, Past Vice President Shri V.P. Gupta ji, D.K. Gandhi ji, Present Vice President Shri Anil Srivastava ji. I first of all congratulate the North Zone for initiating such a wonderful program and giving such a beautiful name, that is Gyan Jyoti. And I have seen your proceedings and I have been joining your webinars. What I liked most about your webinar is the prayer of Mata Saraswati before starting the program. We are all connected with knowledge, and there can be no gain of knowledge without the blessings of Mata Saraswati and blessings of our Guru. Friends, it has been a great effort on behalf of North Zone. I have also attended earlier programs also, and the programs are very beautifully organized. And last time when I had joined with your program, I had suggested that we must stick to the time. And I think Vikram Chawla ji has taken a cue from that. And now they have been insisting that we must start the program in time. Unfortunately, Madam Nikita Badega, probably I don't know for what reason, he could not log in. So anyway, I got this opportunity to be with you. And I think Rajesh Mehta ji is a very, very learned speaker. The subject that has been given is the faceless assessment and faceless appeals. We have been observing from past few days that the government is coming with new ideas so as to eliminate the difficulties of the taxpayers. And this faceless assessment is a one step ahead in that direction. But we are all afraid that what will be the effect of this faceless assessment? Because for the reason that many a times, even when face to face, we are sitting with the assessing officer or the appellate authority, they are not easily convinced with our arguments. And what happens that when you have to refer to certain documents or judgments, and unless you are given a permission to appear personally and explain to the person concerned all your facts, law, then only probably you can get a proper judgment or a favorable judgment in your favor. As far as assessment is concerned, it is understandable that it can be faceless. But I feel that appeal should not have been faceless. In appeals, we should have been permitted to appear before the assessing officer. And I think we need to make a representation to the government in this regard. Anyway, since now it is a first step, and I feel that we should let us see how it comes out and how we are able to deal with this new situation. Because when faceless assessment was initially started, we were facing difficulties in producing evidences because the file that was allowed to be uploaded was a very small file. Later on, when representations were made, then the government changed the system and then they allowed us to upload the 5 MB files and we could upload multiple files. But then again, as our experience goes even before the High Court and the tribunal, that we file a paper book. But unless we refer to a particular page of the paper book,
that particular page is not referred by the authority or by the court. So it will be really very important for us that when we are submitting our written submissions, that we must make reference to whatever compendium we are submitting before the authority, that it is taken care of. Anyway, Rajesh Mehtaji will be now addressing us on this issue in detail. I don't want to curtail his time. So I once again congratulate North Zone and the organizers for organizing a wonderful webinar on the latest and most burning topic, which we have started facing rather, because this has been now implemented from 13th of August 2020. And we have to deal with this situation. So let us be enlightened by our learned speaker. And I once again thank the office bearers of North Zone for giving me this opportunity of a virtual meeting with all of you and expressing my views on this subject. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. May I now request Shri Arvind Singhal to kindly introduce the main keynote speaker of the day and also introduce the topic. Arvind Singhal ji, advocate from Moradabad. Thank you, Vikram Chawla ji. First of all, I extend my hearty thanks to the organizing committee of this webinar, the chairman, Shri All India Tax Practitioner, Shri Asim Zafar ji, and Shri Arvind Gupta ji, the president of the UP Tax Bar Association. We have chosen a very latest and up-to-date topic for the discussion, is the faceless assessment and the appeals. This is a very latest, and it is changing the situations of the income tax department as well as for the SSC and the officers also. What is the aim of the faceless assessment? Is to cut down the interactions between the taxpayers and the income tax officers. Faceless assessment of the scrutiny means that the assessing officer will not know the identity of the taxpayer and would use technology or to scrutinize the details of taxpayers. To this extent, so far as the assessment is concerned, I am agree, you can adopt this faceless assessment procedures. But so far as the appeals and the term is concerned, I will agree with Shri Ganesh Purohit ji. Before the term and before the appeal, we file various papers and point out the each paper and point out the each line and point out the each rulings for the officers concerned, how we agree with them. So far as appeals is concerned, the faceless assessment, how it will be better and will go and get the milestone to the SSC as well as the department. It will be seen in a larger time. Now, I see the way of presentation. To this extent, the senior advocates give the way of presentation. Now the way of presentation is changing to the way of drafting. How you are well prepared drafting, how you will write the drafting will pay the assessment, will pay to you and to your clients in the future also. The Shri Rajesh Mehtaji, I know very well to Shri Rajesh Mehtaji from Indore, who is a very fair city of India. And he has started his practice in 1996. And he has the Bun's son, he is also a chartered accountant. And the Bun daughter, who is also a student of a chartered accountant. I heard him at Moradabad about 8 years before in a webinar. He is a very good and soft-spoken speaker. And I think he will present and give and resolve the problems of the SSCs which are in our mind and our professionals. So far as the various sections is concerned, I would like to produce before him for clarification. This is section 154. 154, how it will be dealt in a faceless assessment. 154, 131, how we will cross examine to the other parties. How we will cross examine 263 and 264, how it will deal in faceless assessments. And furtherly, if the assessment is passed as 144, which has also been covered under this faceless scheme. Under 144, how the remand report will be considered, how the remand will be drafted, how the remand will be asked by the appellate authorities without appearing object party and or his advocates. These are various few issues before us, which will give us and will be highlighted by our speaker, the speaker Shri Rajesh Mehtaji. I welcome Shri Rajesh Mehtaji and invite him for his presentations. Thank you. Thank you. Thank you so much, Arvindji. And may I now request the chief guest of the day and the keynote speaker, Rajesh Mehtaji, to kindly take stage. Rajesh, please. Thank you, Vikram ji. Thank you, Arvind Singhal ji. I am thankful to
our own AFTP North Zone and UP Tax Bar Association for inviting me on the topic of faceless assessment and appeals. Asim Jafar Sahab, North Zone Chairman, Arvind Singhal Sahab, Puneet Singh Sahab, SS Gehlot Sahab, Anand Singhal Sahab, DK Gandhi Ji, Arvind Shukla Ji, OP Shukla Ji, Arvind Mishra Ji, AK Srivastav Sahab, Vikram Chawla Ji, Sanjay Kumar Sahab from Prayagraj, VP Gupta Sahab from Delhi, our own past National President, Madam Premlata Bansal, past President, respected Ganesh Purohit Sahab, and all my friends from AFTP and all the advocates and chartered accountants and tax professionals. So the friends, e-assessment scheme. E-assessment scheme was introduced in the September 2019 by way of notification number 61 2019 and 62 2019. इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2018 में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A एंड 143 सबसेक्शन 3B के माध्यम से यह स्कीम फाइनेंस एक्ट 2018 में इंट्रोड्यूस का प्रावधान लाया गया था, किंतु इस स्कीम को बनाने में कुछ समय लगा. देन दिस स्कीम वाज मोस्टली रेडी इन द सितंबर 2019. सितंबर 2019 में उन्होंने स्कीम को ऑपरेशनल किया. फिर भी कुछ मेनी ऑफ द थिंग्स वर आउट ऑफ दिस फेसलेस एंड द डे ऑफ 13th August was a remarkable day in the history of the income tax when our honorable Prime Minister announced the faceless assessment as well as faceless appeal. Faceless assessment has become 100% for every income tax assessment from 13th August. Before 13th August, many of the assessments were out of the ambit of the faceless assessment. And in this budget 2020, the Finance Minister also announced faceless appeals by way of amending section 250 of the Income Tax Act. Honorable Prime Minister on the 13th August launched Transparent Taxation Platform also. And a very important amendment was also made by way of amending the word also. The e-assessment scheme was earlier introduced in the September 2019. And the notification 61 2019 and 62 2019 contained the name e-assessment scheme. The name of the e-assessment scheme was also changed to faceless assessment scheme. So the name has been changed. So in future also no one will be able to kindly convert it to only e-assessment. The name itself has been changed of the schemes. The scheme will be the faceless assessment scheme. So again the amendments in the faceless e-assessment scheme were notified by way of notification number 60/2020 and notification number 61/2020 on the 13th August 2020. The faceless assessment scheme is also functional in the customs for import of goods. So the customs department is also using the faceless assessment scheme in respect of import of goods in India. In the faceless assessment, the assessments will be fully without interface of the personal interaction. The assessee and income tax authority will never be viewing each other on any platform. There will be neither any personal interface of the assessee with the income tax department. So I had listened it so many years ago that the income tax department and the government of India and the Ministry of Finance wants that there will be no person in the veranda of the इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स के गलियारों में कोई आदमी नहीं घूमना चाहिए. ऐसा इनकम टैक्स में कई बार हायर अथॉरिटीज जो मिनिस्ट्री से सीबीडीटी से हम सुनते थे कि साहब लोगों को नहीं आना पड़े. तो यह स्कीम अब 13 अगस्त के बाद से इट हैज बिकम यह चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है कि अब इनकम टैक्स के गलियारों में किसी भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द इनकम टैक्स विल बी अंडर फेसलेस. एंड हमारा कॉन्टेक्ट किससे होगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. फेसलेस असेसमेंट स्कीम का सेंटर पॉइंट एक ही है,
नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NEAC। अब इनकम टैक्स में ये जो फेसलेस असेसमेंट का नाम तो ई असेसमेंट का नाम तो चेंज करके फेसलेस असेसमेंट कर दिया गया, किंतु हर चीज का नाम नहीं बदल सकते थे आई थिंक, इसलिए उन्होंने नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का नाम चेंज नहीं किया। उसका नाम अभी भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रखा है, उसका नाम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर अभी नहीं किया है। सो दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल बी द ओनली द सेंटर पॉइंट बिटवीन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द असेसी और द अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो इनकम NEAC के अंडर में REAC होगा, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंडर में असेसमेंट यूनिट होगा, वेरिफिकेशन यूनिट होगा, टेक्निकल यूनिट होगा, रिव्यू यूनिट होगा। बट assessee or his authorized representative is not required to interact directly with the assessment unit or with the review unit or with the technical unit or with the verification unit। तो हमें इन यूनिट से कोई कनेक्शन नहीं है। We are only to deal with the National E-Assessment Center। हम जो भी रिप्लाई इनकम टैक्स को फाइल करेंगे वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू इनकम टैक्स के पास जाएगा, और ई वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट, टेक्निकल यूनिट को जो भी फंक्शन होगा दे विल बी इंटरएक्टिंग विद द पब्लिक और अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ओनली थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। सो वी आर नॉट टू डील विद द होल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वी आर टू कीप इन मेमोरी ओनली द NEAC। द jurisdiction will be dynamic jurisdiction। तो अब कोई यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा jurisdiction कहां पर है। No one is required to remember the jurisdiction। 2014 में पूरे इंडिया में नए jurisdiction बनाए गए थे। Now those jurisdictions are of not much of the use for all of us, neither for the assessee nor for the tax consultants or authorized representatives। Otherwise many of us used to find out what is my jurisdiction। कई बार कोई एसएसी है, इलाहाबाद का एसएसी है, प्रयागराज का, उसको इंदौर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो वो इंदौर में हमसे कॉल करके कई बार वहां के लोग पूछते हैं हमारा जुरिडिक्शन इंदौर में कहाँ आएगा बताइए, हमको रिटर्न में लिखना है। सो कई बार हम बाहर के शहरों के रिटर्न भरते हैं तो जुरिडिक्शन हमें मालूम नहीं होता है। सो नाउ वी आर नॉट रिक्वायर्ड, आप तो अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए क्योंकि असेसमेंट इज नाउ जुरिडिक्शन फ्री, सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर रिटर्न ऑल्सो जुरिडिक्शन फ्री। सिलेक्शन ऑफ केसेस थ्रू डाटा एनालिसिस एंड द सिलेक्शन ऑफ केसेस। अभी तक कई सारे स्क्रूटनी असेसमेंट्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया अलग अलग थे। कई सारे स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्यूटराइज सिस्टम से सिलेक्शन होते थे जिन्हें हम CASS कास्ट बोलते थे। कुछ सिलेक्शन असेसिंग ऑफिसर पर डिपेंड होते थे, कुछ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के जो कुछ TEP या सर्वे सर्च के केसेस थे। सर्वे के केसेस में अगर कहीं पे इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ है तो वो कंपलसरी स्क्रूटनी में आता था। So that assessment and their selection of the cases were dependent upon the at the discretion of the assessing officer. Now nothing will be at the discretion of any of the assessing officer. Everything will be done by the automated system. Everything will be done by the data analysis and the artificial intelligence system. So no manual interaction and no manual intervention will be there in the assessments or selection of cases. Assessments will be done by the assessment unit and it will be a team-based assessment. So any assessing officer will not individually have any power to do the assessment. The assessing officer will only be a part of a unit, the assessment unit. So the various units will कई सारी units को मिलने के बाद एक assessment order पास होगा। अभी तक केवल एक असेसिंग ऑफिसर के पास होता था सारा अधिकार, और उस असेसिंग ऑफिसर ने अपनी नोटशीट में क्या क्या किया, उनके केस रिकॉर्ड में क्या क्या है, कई बार असेसी को मालूम नहीं होता था, डिपार्टमेंट असेसी को ये नहीं पता होता था कि असेसी के खिलाफ डिपार्टमेंट के पास क्या क्या चीजें उनके पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है। व्हाई द केस हैज बीन टेकन अप फॉर स्क्रूटनी मेनी टाइम्स। कई सारे स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस, स्क्रूटनी के नोटिस ऐसे होते थे जब हम असेसिंग ऑफिसर से पूछते थे सर हमारा केस स्क्रूटनी में क्यों लिया गया, आप कृपया हमें बताइए, बट असेसिंग ऑफिसर नहीं बताता था। वो बोलता नहीं ये दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू यू। एंड मेनी टाइम ऑफ केसेस कास्ट में जो सिलेक्शन होता था उसमें लिमिटेड स्क्रूटनी में जरूर से कई बार नोटिस में लिखा हुआ आता था कि आपका केस स्क्रूटनी में क्यों लिया गया, बट जब हम असेसमेंट कराने जाते थे तो कई बार असेसिंग ऑफिसर कहता था नहीं आपका केस लिमिटेड स्क्रूटनी तो है बट देयर आर सम मोर पॉइंट्स, सो आई एम टेकिंग द परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज फॉर योर डिटेल्ड स्क्रूटनी। तो हमारा लिमिटेड स्क्रूटनी का केस भी डिटेल्ड स्क्रूटनी में कन्वर्ट हो जाता था। किंतु अब यह जो फेसलेस असेसमेंट है इसके अंदर
सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है कि आपको कोई भी स्क्रूटनी का नोटिस आएगा, उस नोटिस पर ही आपको रीजन लिखा रहेगा। नोटिस पर देयर विल बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड द रीजन कि आपका केस स्क्रूटनी में क्यों लिया गया, और ओनली उसी रीजन के लिए आपको जवाब देना होगा। Because more than 98% of the cases will be selected for scrutiny only based upon the information obtained by the income tax department through statement of financial transaction or through annual information statement. So department के पास जो online information banks से, other airlines से और रजिस्ट्रार ऑफिस से, जहां इमोबल प्रॉपर्टीज का जो रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी सेल परचेज की स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हमें इंफॉर्मेशन आती है, एंड वेरियस अदर एजेंसीज, म्यूचुअल फंड एजेंसीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस से जो इंफॉर्मेशन आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेक्शन 285BA में जिन जिन एजेंसीज पर लागू होता है, उनका स्कोप अभी इस वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में और स्कोप बढ़ाया जाने वाला है। तो उस स्कोप के आधार पर जितनी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आएगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगा। मान लिया किसी व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया कैश जमा किया है और 1 करोड़ रुपए के चेक जमा किए, 2 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किया, 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ चेक। किंतु जब उसका रिटर्न देखा गया तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक पाया कि इस व्यक्ति का साल भर का टर्नओवर है 50 लाख रुपए। ही हैज डिस्क्लोज्ड दिस टर्नओवर टू द जीएसटी डिपार्टमेंट आल्सो। उनने 50 लाख का टर्नओवर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताया, 50 लाख का टर्नओवर अपने जीएसटी रिटर्न में बताया, जबकि बैंक में ही हैज डिपॉजिटेड 1 करोड़ रुपीस कैश एंड 1 करोड़ रुपीस चेक। तो कंप्यूटर ने जब ये एनईएसी का जो कंप्यूटर सिलेक्शन सेंटर है, उसने ऑटोमेटिकली मिसमैच पाया कि जब 2 करोड़ रुपए व्यक्ति जमा कर रहा है तो 5-10 लाख 20 लाख का डिफरेंस इज अलाउड। वो एक टॉलरेंस लिमिट उनके सॉफ्टवेयर में रहेगी कि इतना डिफरेंस चलता है। बट इफ देयर इज a 4 times difference in the bank transaction and between the turnover disclosed by the assessee, then the computer will issue a notice to the assessee, kindly explain the reason of use deposit in bank. फिर assessee को अपना रीजन बताना है कि साहब 2 करोड़ रुपए में से ऐसा हुआ है कि मैंने 50 लाख तो पिछले साल के जो डेटर्स की मेरी रिकवरी हुई थी वो मैंने इस साल कैश जमा किया है बैंक में, और मैंने 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया हुआ करंट ईयर में साहब, ड्यू टू कोविड आई हैव टेकन ए लोन from bank, so मेरा turnover तो 50 लाख ही, you can verify it from the GST department also, then his case will be immediately closed by the assessment unit. इस तरह के केस फिर immediately close भी हो जाएंगे, उनमें फिर कोई डिटेल स्क्रूटनी नहीं होगा। दे में ओनली आस्क फॉर द डिटेल ऑफ, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन का उन्हें लेजर दिखाना होगा हमें, और पिछले डेटर्स की रिकवरी है तो पिछले वर्ष का टर्नओवर बताना होगा कि साहब पिछले साल भी अगर आपने 50 लाख का माल बेचा तो पिछला 100% उधार में था क्या, तो दैट वी विल हैव टू बी एक्सप्लेन कि साहब 100% माल ही मेरा उधार में बिका है या 2 साल पुरानी उधारी, एवरी ईयर मेरा 50% रिकवरी होता है। So the selection of cases will be more than 98% based on data analysis and use of artificial intelligence. So there will be no manual intervention in selection of the cases. So कोई भी ऑफिसर किसी भी एसएससी के खिलाफ, चाहे उसका कोई भी डिपार्टमेंट के नॉलेज में कुछ भी वर्बल कुछ भी हो, they cannot do anything against any एसएससी। बट कुछ केसेस जो हैं, some of the cases will be out of the फेसलेस असेसमेंट स्कीम। सीरियस फ्रॉड के अगर कोई केसेस हैं जो एसएससी के अगेंस्ट में, अगर डिपार्टमेंट की जानकारी में कोई ऐसा मैटर आता है कि दैट इज ए केस ऑफ सीरियस फ्रॉड विद द बैंक, कि बैंक से साहब इसने 100 करोड़ का लोन लिया है और इस आदमी के, तो देन दोस केसेस विल बी आउट ऑफ द फेसलेस असेसमेंट। मेजर टैक्स इवेजन का कोई केसेस है, जीएसटी के जैसे बोगस परचेज के केस कई बार नॉलेज में आते हैं सरकार के, 250 करोड़ के बोगस परचेज बिल, 500 करोड़ का बोगस परचेज बिल का रैकेट, तो इस तरह के रैकेट से कनेक्टेड या ऐसा कोई मेजर टैक्स इवेजन का है, तो those cases will be out of the faceless assessment. Sensitive and search matters, search cases section 153A 153C के जो भी assessment है, those will be out of purview of the faceless assessment. Sensitive cases क्या होगा, इसकी definition अभी नहीं दी है, but the sensitive cases की क्या definition होगी, CBDT will define with the consultation, the principal CCIT of the National E-Assessment Center will determine the sensitive cases and those will be out of the faceless. केसेस अंडर ब्लैक मनी एक्ट में जो भी केसेस होंगे वो केसेस फेसलेस से बाहर रहेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन के केसेस बाहर रहेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो केसेस हैं वह भी फेसलेस से बाहर रहेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि असेसी और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर,
के बीच में NEAC ही एक कड़ी रहेगा. NEAC will only be acting between the regional e-assessment center and the assessee. Taxpayer is only required to contact to the NEAC and not to the regional e-assessment center. So there will not be any direct contact of the assessee with the REAC. फिर REAC के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स होगी? REAC के अंदर 3 यूनिट होती है, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट एंड वेरिफिकेशन यूनिट. असेसमेंट यूनिट का काम होगा असेसमेंट करने का. रिव्यू यूनिट विल बी रिव्यूइंग द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर्ड बाय द असेसमेंट यूनिट. वेरिफिकेशन यूनिट का काम होगा अगर REAC ने कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई फर्दर सर्टेन इंक्वायरीज या वेरिफिकेशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है NEAC को, तो NEAC वेरिफिकेशन यूनिट को अलॉट करेगा अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द असेसमेंट यूनिट. और हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि वेरिफिकेशन यूनिट डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट से डील नहीं करेगा. असेसमेंट यूनिट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन करवाना है, कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वेरिफिकेशन यूनिट का कार्य होगा कि वह NEAC को रिक्वेस्ट करेगा. असेसमेंट यूनिट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनकम आपस में भी दे विल नॉट डूइंग एनी इंटरेक्शन विद देमसेल्फ. Assessment unit, verification, review unit, all these are the part of the regional e-assessment center. ये खुद सारे इनकम टैक्स वाले खुद ही हैं, बट ये भी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे. All these will be doing interaction only through national e-assessment center. अगर असेसमेंट यूनिट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वेरिफिकेशन यूनिट से वेरीफाई करवाना है, they will give a request to the national e-assessment center and national e-assessment center will allot it on automated system. नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर भी ऐसा नहीं कि एक साथ नोटशीट का प्रिंट आउट निकाला, नोटशीट पे उन्होंने अपनी सील और साइन करी और फाइल को बढ़ा दिया. नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विल बी देयर. कोई भी कागज का प्रिंट आउट निकालने की किसी भी यूनिट को कहीं पर कोई जरूरत नहीं होगी. देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट बिटवीन एनी ऑफ द यूनिट. सो NEAC विल ऑटोमेटिकली अलॉट, कंप्यूटराइज सिस्टम से अलॉट होगा. NEAC का कोई कंट्रोल नहीं होगा कि कौन सी वेरिफिकेशन यूनिट को हम काम अलॉट कर रहे हैं. फिर असेसमेंट यूनिट ने अगर कोई ऑर्डर बना दिया तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू के लिए अगर भेजना है तो रिव्यू यूनिट को अलॉट किया जाएगा. तो रिव्यू यूनिट को जो अलॉटमेंट होगा दैट विल आल्सो बी डन बाय द नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर. और नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर रिव्यू यूनिट को भी जो केस अलॉट करेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द ऑटोमेटेड सिस्टम. कंप्यूटर अपने आप अलॉट करेगा कि किस रिव्यू यूनिट के पास कंप्यूटर से जाएगा. सो नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर विल नॉट आल्सो डूइंग एनी मैनुअल इंटरेक्शन विद एनी ऑफ द यूनिट्स. Regional e-assessment center may deem necessary to facilitate conduct of e-assessment proceeding in cadre controlling region of principal chief commissioner. Regional e-assessment center जो रहेंगे वो principal chief commissioner के अंडर में वर्क करेंगे. असेसमेंट यूनिट का कार्य क्या होगा? असेसमेंट यूनिट का काम होगा टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग द असेसमेंट. असेसमेंट का काम असेसमेंट यूनिट का होगा, बट असेसमेंट यूनिट खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होगा. उनका काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स और इश्यूज मटेरियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी लायबिलिटी. असेसमेंट यूनिट का काम होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स उन्हें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, या किस कौन कौन से मटेरियल इश्यूज हैं जिसके आधार पे वो इनकम टैक्स असेसमेंट करेंगे. दोज इश्यूज विल हैव टू बी डिटरमाइंड आइदर फॉर determining any liability or for determining the refund under the act. And क्या उन्हें इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन चाहिए, किस पॉइंट्स पर चाहिए, कौन से इश्यूज पर चाहिए. एनालिसिस ऑफ मटेरियल फर्निश्ड बाय द असेसी और बाय एनी अदर पर्सन. असेसमेंट यूनिट का काम होगा कि जो मटेरियल उन्हें असेसमेंट यूनिट को फर्निश किया गया है असेसी के द्वारा या एनी अदर पर्सन मींस 133 सबसेक्शन 6 में अगर कहीं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कोई बुलाई गई है उसको भी असेसमेंट यूनिट वेरीफाई करेगा और उन सभी के आधार पर दे विल बी डूइंग देयर असेसमेंट. एंड एनी अदर job that is required for making the assessment will be done by the assessment unit. Verification unit का काम क्या होगा? That will be doing the verification function. उसमें क्या क्या होगा? Inquiry, cross verification, cross examination of the books of accounts का verification, examination of the witnesses, recording of statements. अगर असेसी के खुद के बयान सेक्शन 131 में लेना है या कोई थर्ड पार्टी के बयान सेक्शन 131 में रिकॉर्ड करना है तो यह वेरिफिकेशन यूनिट के द्वारा किया जाएगा. पर वेरिफिकेशन यूनिट भी जो कुछ भी करेगा वो दैट विल बी डन इन ए पेपरलेस मैनर, फेसलेस मैनर में होगा. और अगर किसी के बयान लेना है तो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, बट देट विल बी ऑन अ फेसलेस मैनर, सो डायरेक्ट इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा. And most of the recording of statement 131 will be mostly avoided. It will be done only when it will be most necessary, so that no human interface is allowed. And such other function as may be required for the purpose of the verification. Technical units. Technical units का काम क्या होगा? Providing technical assistance. Other units को technical assistant, assessment unit को technical assistance provide कराना, लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराना, अकाउंटिंग के बारे में कोई अगर टिपिकल अकाउंटिंग एंट्रीज है, कई बार जो बड़ी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी कई सारी अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसी होती है जो हो सकता है असेसमेंट यूनिट को लीगली समझने में प्रॉब्लम आता है, देन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ टेक्निकल यूनिट्स. बिकॉज बड़े कॉर्पोरेट्स में कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग इंड एस वगैरह जो लागू होते हैं, उसके आधार पर अगर उन्हें आईसीडीएस उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया है नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईसीडीएस में क्या मिसमैच है, उस डिफरेंस को मालूम करने के लिए हो सकता है दे विल हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग, सो दे असेसमेंट यूनिट विल रेफर टू द टेक्निकल यूनिट थ्रू द एनईएससी, नॉट डायरेक्टली. सो फॉरेंसिक कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, फॉरेंसिक जांच उन्हें चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई हेल्प उन्हें लेना है, किसी ने उन्हें असेसमेंट यूनिट को टेली का डाटा प्रोवाइड किया, उसमें आईटी फील्ड में कोई जानकारी उन्हें लेना है, तो दे विल टेक द हेल्प ऑफ द टेक्निकल यूनिट्स. वैल्यूएशन अगर किसी भी चीज का करना है, कोई ज्वेलरी का बिजनेस है, बिल्डर है या किसी का रियल एस्टेट है, तो उसका वैल्यूएशन का अगर कोई टेक्निकल चीज समझना है, ज्वेलरी वैल्यूएशन या एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का वैल्यूएशन अगर कोई समझना है, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द टेक्निकल यूनिट्स. ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज है, डाटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट और एनी अदर टेक्निकल मैनर, वो चीजें टेक्निकल यूनिट्स का काम होगा असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड कराना. रिव्यू यूनिट्स. रिव्यू यूनिट्स का क्या फंक्शन होगा? रिव्यू यूनिट्स विल आल्सो बी फंक्शनिंग अंडर द रीजनल ई असेसमेंट सेंटर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर. रिव्यू यूनिट का सबसे बड़ा काम होगा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो आया उसको रिव्यू करना. बिकॉज जिस तरह से हम जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, हमारा क्लाइंट हमारे पास जो डाटा लाया है असेसमेंट में अपलोड करने के लिए, हम हमारे यहाँ पर बनाएंगे, हमारा स्टाफ बनाएगा, आवर असिस्टेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग, उसे हम चेक करेंगे, हमारे द्वारा चेक करने के बाद एक बार हमें उसे रीचेक करना चाहिए. जिस तरह से आप देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4 यूनिट होगी आपके असेसमेंट ऑर्डर को चेक करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, तो हमें भी हमारे ऑफिस में अलग अलग टीयर सिस्टम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारे क्लाइंट ने कोई डाटा हमारे स्टाफ को दिया और स्टाफ ने डायरेक्टली अपलोड कर दिया, एक बार अपलोड करने के बाद आप उसे कॉल बैक नहीं कर सकते, फिर आपको उसमें रेक्टिफिकेशन ही फाइल करना होगा. और एक बार जो एविडेंस चला हो गया, अगर उसमें कोई मेजर गलती चली गई, दैट विल बी लुक्ड एट द सस्पिशन, उसको शंका की निगाह से देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आपने क्यों पेश किया, इसको बाद में चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको. इसलिए जो भी डाटा हमारे द्वारा हमारे क्लाइंट्स के लिए अपलोड किया जा रहा है, हमें भी हमारे ऑफिस में 2-3 बार चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपलोड करना होगा. बिकॉज इन दिस ऑनलाइन सिस्टम वी ऑल आर अवेयर, हालांकि हम कई सारे इनकम टैक्स रिटर्न, अदरवाइज आज के 20 साल पहले कई बार हमने यहां तक देखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न, जब हमारा स्टाफ 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट होती थी, तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे स्टाफ इनकम टैक्स में लंबी लाइन में खड़े होते थे. 4 बजे हमारा स्टाफ इनकम टैक्स रिटर्न लेके इनकम टैक्स ऑफिस गया है और 5 बजे क्लाइंट का फोन आता, सर वो रिटर्न में एक एलआईसी प्रीमियम क्लेम करने से छूट गया, एक पीपीएफ का डिडक्शन लेना रह गया है, एक टीडीएस का डिडक्शन रह गया है, तो जल्दी से आप स्टाफ को फोन कर दो, रिटर्न अभी फाइल नहीं करे, वो खड़ा रहे लाइन में. तो हम देखते चलो अभी नंबर नहीं आया, हम जाके उसको रिटर्न हाथों हाथ अमेंड करके, तो 1 घंटे में हमें समय मिलता था. नाउ इन दिस ऑनलाइन सिस्टम ऑल वी आर अवेयर, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम ऐसा नहीं कि हम अभी पहली बार यूज कर रहे होंगे, हम ऑलरेडी पिछले 10-15 सालों से इनकम टैक्स में कई तरह के ऑनलाइन सिस्टम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. बट इन दिस असेसमेंट हमें ज्यादा सतर्क इसलिए रहना होगा क्योंकि अभी तक तो हम मोस्टली ऑनलाइन रिटर्न ही फाइल करते थे या रिप्लाई फाइल करते थे, पर रिप्लाई में भी कई बार हम असेसिंग ऑफिसर के पास फिजिकली जाते और कोई करेक्शन होता तो हम कर भी देते हैं ना, असेसिंग ऑफिसर यूज्ड टू अलाउ अस. किंतु अब ये जो हम पेपर से सबमिट करेंगे, दिस पेपर्स विल बी अवेलेबल टू हायर अपीलेट फॉर्म्स आल्सो, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने असेसमेंट में दिए हैं, अगर आपका केस अपील में जाता है तो आप अपील में जब भी जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका फोल्डर सीआईटी अपील को फॉरवर्ड कर देगा. अगर आप ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट की तरफ से जो डीआर आएगा, वो डीआर के पास पूरा फोल्डर अवेलेबल है, उसका प्रिंट वो ट्रिब्यूनल में पूरी फाइल लेकर आएंगे. बिल्कुल उस फाइल में आप एक भी कागज कम ज्यादा नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फर्निश एनी एडिशनल एविडेंस. अगर आपने कोई एडिशनल एविडेंस दिया तो आपका केस हो सकता है वापस सेट असाइड हो जाए या एओ से रिमांड रिपोर्ट मांगी जाएगी. आपका केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो डिपार्टमेंट वही बंच देगा जो आपने यहाँ पर फेसलेस में अपलोड किया था. यही बंच आपके केस में सुप्रीम कोर्ट तक काम आएगा.
इसलिए हमें जो भी हमारा रिप्लाई हम फाइल कर रहे हैं, दैट शुड बी चेक्ड एंड रीचेक्ड 2-3 times. Only thereafter we will be able, we should upload this on the, and we should, it will be advisable if we are having any, हमारे क्लाइंट्स को भी हम दिखा लें तो ज्यादा बेटर है. क्लाइंट की खुद की डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. या वैसे ईवीसी आता है, ईवीसी भी क्लाइंट के मोबाइल पर आता है. सो क्लाइंट कैन नॉट से दैट मेरे से बिना पूछे हमारे टैक्स कंसल्टेंट ने अपलोड कर दिया था. इसी प्रकार इनकम टैक्स में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के लिए देयर विल बी द रिव्यू यूनिट, विच उनका काम क्या होगा, it will be doing the checking whether the relevant and material evidence has been brought on record. कई बार हम अभी असेसमेंट में देखते हैं, असेसिंग ऑफिसर को हमने टर्नओवर बताया 50 लाख. उन्होंने कहा साहब हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि आपका रिटेल में टर्नओवर थोड़ा ज्यादा होता है, पर आपने बुक्स में कम डिस्क्लोज किया है, तो एक काम करता हूं मैं आपका असेसमेंट को 60 लाख के टर्नओवर पे असेस कर देता हूं. तो ठीक है, असेसी ने भी म्यूचुअली एग्री कर लिया, साहब ठीक है 60 लाख पे असेस कर दीजिए. फिर पर जब असेसी के हाथ में असेसमेंट ऑर्डर आया तो असेसी ने देखा साहब मैं तो टैक्स सोच रहा था 10,000 लग कर आएगा, किंतु अभी मुझे तो टैक्स 1 लाख लग गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू द अपील. अब असेसी अपील में चला था. असेसिंग ऑफिसर को असेसी ने बोला था साहब आई विल नॉट फाइल द अपील बिकॉज दिस इज द एग्रीड एडिशन. बट उसने देखा कि नहीं साहब टैक्स तो 10,000 की जगह 1 लाख हो गया, मेरा स्लैब रेट भी चेंज हो गया आपने टर्नओवर एडिशन करने के कारण, एंड माई इशू इज गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट द एडिशन इन द टर्नओवर. अपील में जाते अपील वाले ने कहा साहब विदाउट एनी बेसिस टर्नओवर कैन नॉट बी एनहांस्ड. तो उन्होंने टर्नओवर वापस रिड्यूस हो गया, आपका टैक्स 0 हो गया. इसलिए रिव्यू यूनिट ये देखेगा कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने टर्नओवर बढ़ाया तो उसके पास अनअकाउंटेड टर्नओवर के क्या एविडेंसेस है, व्हाट बैंक स्टेटमेंट्स दे आर हैविंग विद देम फॉर दिस. अगर उनके पास कोई ऐसा बैंक स्टेटमेंट्स नहीं है या ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि देयर वाज ए टर्नओवर एडिशन रिक्वायर्ड टू बी डन इन द टर्नओवर, देन दे रिव्यू यूनिट उनको मना कर देगी कि नहीं ऐसा एडिशन नहीं चलेगा. अपील में यह केस आपका फॉल डाउन हो जाएगा. या अगर असेसी ने कोई खर्चा किया है, डिपार्टमेंट ने, कई बार हम फिजिकल हियरिंग में जाते हैं, असेसिंग ऑफिसर ने कहा साहब आपका जो चाय नाश्ते का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, इसमें 50% डिसअलाउ कर देते हैं. कार का डेप्रिसिएशन है उसमें 25% डिसअलाउ कर देते हैं बिकॉज आपके पास पर्सनल एक्सपेंसेस का कोई लॉगबुक अवेलेबल नहीं है, पर्सनल यूज का लॉगबुक अवेलेबल नहीं है कार का, तो इतना डिसअलाउ कर देते हैं. बट रिव्यू यूनिट ये देखेगा कि अगर आपने ऑफिसर ने 25% एडहॉक डिसअलाउंस कोई भी किया है, तो एडहॉक डिसअलाउंस के लिए अगर कोई एविडेंस नहीं है, एडहॉक डिसअलाउंसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में सीआईटी अपील या आईटीएटी में जाके सारे स्ट्रक डाउन हो जाते हैं, एसएससी के फेवर में केस हो जाते हैं. तो इस तरह के केस ऊपर नहीं जाएंगे. सो इन फ्यूचर जो भी मोस्ट ऑफ द कई सारे अभी भी हम देखते हैं सीआईटी अपील और आईटीएटी लेवल पर जाकर मोर देन 75% केसेस में एसएससी के फेवर में होते हैं. तो इस तरह के केसेस अब फेसलेस असेसमेंट में आना कम हो जाएंगे. अच्छा, असेसिंग ऑफिसर भी कई बार हमारा जानबूझ के टैक्स लगा देते थे, साहब थोड़ा टैक्स तो लगा देते हैं ताकि आपका केस में 148 नहीं होगा, आपका केस ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा टैक्स लगा देते हैं. अब इस तरह का थोड़ा नहीं, जो होगा या तो 0 होगा, अगर कुछ होगा तो दैट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द एविडेंसेस, देयर विल नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी एडिशंस. सो अगर असेसिंग ऑफिसर अब आपको लीगली रिलीफ अलाउ करना चाहता है, ही विल नॉट फियर, उसे भी कोई डर नहीं होगा. अदरवाइज वो डरता था साहब कोई मेरे लिए ऊपर पूछेगा कि साहब मैंने आपको इतना बड़ा टर्नओवर रिलीफ क्यों दिया, एडिशन क्यों नहीं किया. इफ दे आर नॉट हैविंग एनी एडवर्स एविडेंस, दे विल नॉट मेक एनी एडिशन. सो रिव्यू यूनिट विल चेक दैट देयर इज एनी रिलेवेंट एंड मटेरियल एविडेंस हैज बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड और नॉट, whether the relevant points of fact and law have been incorporated in the draft order. क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आईटीएटी तक डिसाइड होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी डिसाइड होता है. तो मेनी टाइम्स इट इज सीन दैट कई सारे केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आईटीएटी में जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे छोटा मोटा टेक्निकल के मिस्टेक हो गया, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है उन्हें. कई सारे जैसे सेक्शन 14A में कई जजमेंट आ गए कि सेक्शन 14A के अनुसार रूल 8D में जो डिसअलाउंस है उन्हें सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, डिसअलाउ, वो केस लॉ के पॉइंट पे स्ट्रक डाउन हो गया. 153A 153C का केस, 153C में ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि सर्च केसेस फेसलेस के बाहर हैं, बट सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो करोड़ों का एडिशन भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार स्ट्रक डाउन हो गया. तो इसलिए दे विल सही, रिव्यू यूनिट ये देखेगा कि लॉ पॉइंट के ऊपर जो उनको रिकॉर्ड पे जो वर्ड्स लिखना चाहिए, दोस वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एज पर द इनकम टैक्स लॉ और नॉट, और एज पर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और नॉट, वेरियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट कौन सी लगती है एसएससी की, उसका जजमेंट फॉलो किया गया नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर तो नहीं किया गया, चाहे वो एसएससी के फेवर में हो चाहे वो डिपार्टमेंट के फेवर में हो, वेयर द सुप्रीम कोर्ट लॉ हैव बीन फॉलोड और नॉट, and various income tax rules and notification have been followed or not.
तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ को पहले से ही रिव्यू यूनिट स्ट्रॉन्ग करके चलेगी. सो अगर उसके बाद अगर हमारा कोई केस आता है तो वी विल हैव टू फाइट इट वेरी स्ट्रांगली एट हायर अपीलेट फोरम्स. Whether issues on which addition or disallowance should be made have been discussed in the draft order. जो इश्यूज पे एडिशन किया जा रहा है उसका प्रॉपर डिस्कशन हुआ है नहीं हुआ है. ऑफिसर ने ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी बिना विदाउट एनी डिस्कशन ही हैज मेड द एडिशन, ऐसा एडिशन नहीं चलेगा. So whether the applicable judicial have been decision have been considered or not, or the arithmetical correctness have been considered is there or not. तो इस तरह की चीजें पहले रिव्यू यूनिट्स के द्वारा देखी जाएगी. तो इस तरह से पूरा रिफाइन होने के बाद असेसमेंट ऑर्डर एनईएससी के पास जाएगा, असेसी के पास जाएगा, देन द असेसमेंट ऑर्डर विल बिकम फाइनल. These three units in the assessment unit, review unit and the verification unit shall not be directly interacting with each other. They will interact via the NESE only, as I have already told. NESE shall act as a single point of contact, and internal communication between these all three units will also be in the electronic mode only. As I have already told that there will not be any physical movement of any of the documents. NESE पे क्या होगा? NESE का ऑफिस पूरे इंडिया में ओनली एक ही जगह रहेगा, दिल्ली में रहेगा. दिल्ली में प्रिंसिपल CCIT होंगे. प्रिंसिपल CCIT के अंडर में देयर विल बी 4 कमिश्नर्स. एक कमिश्नर के अंडर में एक एडिशनल कमिश्नर होगा. एक एडिशनल कमिश्नर के अंडर में 2 डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर होंगे. फिर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर भी CCIT के अंडर में वर्क करेगा. उसके अंडर में 3 यूनिट्स होगी, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट एंड रिव्यू यूनिट. उन यूनिट्स में एडिशनल कमिश्नर होंगे. हर यूनिट्स में एक एडिशनल कमिश्नर होगा. उनके अंडर में एक डिप्टी कमिश्नर और 5 असेसिंग ऑफिसर होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होंगे. फिर इन यूनिट्स का प्रोसीजर क्या होगा, इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. केसेस विल बी डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स, and NESE will issue the notice issuing the specific issues for selection of assessment. डाटा एनालिटिक्स से नोटिस इश्यू होगा. फिर यह नोटिस NESE के द्वारा असेसी को दिया जाएगा. असेसी को उस नोटिस का रिप्लाई विद इन 15 डेज देना है. NESE फिर जब असेसी का रिप्लाई आने के बाद यह केस असेसमेंट यूनिट को अलॉट करेगी RESE में. फिर असेसमेंट यूनिट NESE को रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो असेसमेंट NESE विल गिव नोटिस टू द असेसी, एंड असेसिंग यूनिट में रिक्वेस्ट टू द NESE फॉर वेरिफिकेशन to be done by the verification unit. फिर assessment unit can request NESE for any technical assistance from the technical unit. Request will of the AU will to seek help from technical verification unit shall be routed through NESE. If AU requests information, NESE to issue notice to the assessee. Assessee is to reply within the time specified in the notice, or he may seek adjournment. असेसी को एक लिखित में एप्लीकेशन देना होगी अगर वो एडजॉर्नमेंट चाहता है तो. फिर असेसी का जो भी रिप्लाई आएगा वो असेसमेंट यूनिट के साथ NESE के द्वारा शेयर किया जाएगा. अगर असेसी ने विद इन ड्यू डेट कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को एक नोटिस इश्यू करेगा सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए. फिर असेसी को सेक्शन 144 के शो कॉज नोटिस का जवाब देना होगा. अगर असेसी 144 के शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देता है तो NESE असेसमेंट यूनिट को एक रिप्लाई दे देगा कि असेसी से कोई जवाब नहीं आया, नाउ यू कैन प्रोसीड टू डू द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 बाय वे ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. फिर AU असेसमेंट यूनिट विल स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ पेनल्टी टू बी लेविड इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर. पेनल्टी अगर 270A के में 270A कैपिटल A में अगर कोई पेनल्टी लगाई जाना है तो वो असेसमेंट ऑर्डर में स्पेसिफाई की जाएगी असेसमेंट यूनिट के द्वारा. अगर असेसी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है तो नॉन कंप्लायंस के लिए सेक्शन 272 कैपिटल A में अगर कोई पेनल्टी लगाई जाना है तो वह पेनल्टी भी NESE के द्वारा लगाई जाएगी और असेसमेंट यूनिट के द्वारा उसे इनिशिएट किया जाएगा. ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो बनाया जाएगा असेसमेंट यूनिट के द्वारा, वह असेसमेंट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी NESE को भेजी जाएगी. फिर NESE इस को ड्राफ्ट NESE टू एग्जामिन द ड्राफ्ट एज पर द बोर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. NESE इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को जो CBDT एक सिस्टम बनाएगी, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएगी, उस कंप्यूटराइज सिस्टम के आधार पे कंप्यूटर से भी चेक करेगा. उसके बाद ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को प्रोवाइड किया जाएगा. NESE में फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब NESE ड्राफ्ट ऑर्डर को ऐसा नहीं असेसमेंट यूनिट में दिया और उन्होंने असेसी को फॉरवर्ड किया. NESE कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक करेगा
कि ऐसा तो नहीं कि एसएससी की इनकम थी 5 लाख और असेसिंग ऑफिसर ने इसका असेसमेंट 5 करोड़ कर दिया। तो सीबीडीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी एनईएससी को कि अगर कोई हाई पिच असेसमेंट है तो उसको वापस से रीचेक किया जाए एनईएससी के द्वारा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 जीरो ज्यादा लग गए गलती से, तो 5 लाख का असेसमेंट 5 करोड़ पे हो गया। तो दे विल चेक कि 5 करोड़ का एडिशन क्यों हुआ हाई पिच असेसमेंट से, ताकि एसएससी को मुक्ति मिलेगी। अब दैट विल बी रीचेक्ड बाय द रिव्यू यूनिट। तो एनईएससी विल देन फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑर्डर, फिर वो डिमांड नोटिस इशू करेगा, शोकॉज नोटिस फॉर पेनल्टी इशू करेगा एंड इशू द नोटिस टू द, और ये सब चीजें एसएससी को दी जाएगी। या अगर एसएससी के द्वारा modified suggested notice to the assessee why assessment should not be finalized as per draft assessment order. NESC assessee को बोलेगा साहब ये modified, अगर if modification is suggested, notice to assessee, अगर कोई modification है तो assessee को notice दिया जाएगा कि ये modification के साथ आपका draft order आया है, इसमें आपको और कोई modification है तो you should modify us. फिर NESC चाहे तो वह draft assessment order को review unit को भेज सकता है। फिर रिव्यू यूनिट अगर बोलता है कि ड्राफ्ट ऑर्डर सही है तो वो वापस से एनईएससी को रिप्लाई कर देगा नहीं ये ड्राफ्ट ऑर्डर सही है, नाउ यू कैन फॉरवर्ड इट टू द एसएससी। इफ मॉडिफिकेशन इज सजेस्टेड बाय द एनईएससी देन टू द एनईएससी, देन एनईएससी अदर असेसमेंट यूनिट को भेजेगा। यहाँ देखिए आप, रिव्यू यूनिट ने अगर कोई मॉडिफिकेशन बताया तो जिस असेसमेंट यूनिट ने ओरिजिनली असेसमेंट किया था उसके पास ये ऑर्डर नहीं जाएगा। ये ऑर्डर अब एनईएससी अदर असेसमेंट यूनिट को भेजेगा कि रिव्यू यूनिट ने कुछ हमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए, आप चेक करिए कि असेसमेंट ऑर्डर में क्या गलती, असेसमेंट यूनिट ने क्या गलती किया। सो दैट विल गो टू द अदर असेसमेंट यूनिट, और वो अदर असेसमेंट यूनिट का सिलेक्शन भी कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा। एनईएससी विल नॉट हैव एनी डिस्क्रेशनरी पावर टू सिलेक्ट एनी अदर पर्टिकुलर असेसमेंट यूनिट। कंप्यूटर अपने आप सिलेक्ट करेगा कि कौन सी असेसमेंट यूनिट को यह सिस्टम ऑटोमेटिक अलॉट होगा उसको। So other assessment unit will prepare the revised draft assessment order and then it will send to the NESC. And यह revised draft assessment order फिर वापस assessee को दिया जाएगा। फिर assessee इस draft assessment order पर अपना reply देगा। assessee will reply, assessee ने जो reply फाइल किया है वो reply वापस assessment unit को share किया जाएगा। फिर assessment unit assessment order prepare करेगा after considering the assessee's reply. Thereafter the final order will be served on the assessee. अब आप यह एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए कि assessee को ऑर्डर भेजने से पहले डिपार्टमेंट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेज रहा है, assessee से मॉडिफिकेशन इनवाइट कर रहा है, मॉडिफिकेशन को रिव्यू यूनिट चेक कर रही है। मतलब assessee ने अगर अपना फाइनल रिप्लाई भी दे दिया उसके बावजूद भी कितना सारा समय इन सारे प्रोसेसेस में लगने वाला है। तो अगर आप देखिए असेसमेंट ईयर 2018-19, असेसमेंट ईयर 2018-19 की टाइम बारिंग डेट थी 30 सितंबर 2020, क्योंकि ये प्रीपोन कर दी गई थी। पहले हमारा असेसमेंट हर साल पहले कभी 31 मार्च को होते थे, उसको प्रीपोन करके 31 दिसंबर किया गया। इस असेसमेंट ईयर 2018 के असेसमेंट की टाइम बारिंग डेट को प्रीपोन करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था एक्ट में, किंतु ड्यू टू कोविड-19 यह जो नोटिफिकेशन के द्वारा यह 30 सितंबर की डेट को हालांकि एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। फिर भी 31 मार्च 2021 तक असेसी को भी अपना लीगल रिप्लाई फाइल करने का अधिकार है। तो आप देखिए अगर असेसी 25 मार्च 2021 को कोई रिप्लाई देता है तो इतने सारे प्रोसेस कैसे होंगे कि एनईएससी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर वापस असेसमेंट यूनिट को भेजेगा, असेसमेंट यूनिट वापस रिव्यू यूनिट को भेज सकता है। तो मेरे अनुसार अगले साल जब फरवरी 2021 में नया बजट आएगा उस बजट में एक अमेंडमेंट आ सकता है कि असेसी के द्वारा एनईएससी को रिप्लाई देने की लास्ट डेट में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनईएससी के द्वारा असेसमेंट ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट में देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ 1 मंथ, कि असेसी को 31 मार्च देंगे और डिपार्टमेंट भी ऑर्डर 31 मार्च को पास करेगा। तो आखिरी 2-4 दिनों में कुछ भी वर्क नहीं हो पाएगा एंड ऑल दिस जजमेंट विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि विदाउट अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मेरा ऑर्डर पास कर दिया गया, मैंने 25 तारीख को आई एम लीगली ऑथोराइज्ड टू फर्निश माय रिप्लाई अप टू द 31st मार्च और 30th सितंबर। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2019-20 के जो असेसमेंट होने वाले हैं वो उसकी लास्ट डेट है टाइम बारिंग 31 मार्च 2021 है। अब उनका सिलेक्शन कब होगा? सारा 30 सितंबर 2020 के पहले केसेस का सिलेक्शन होने वाला है स्क्रूटनी में। अब 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा असेसी को। साहब 6 महीने, कई बार अभी तक तो हमारे असेसी 1.5 साल में भी कई सारे रिप्लाई हम असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट, इसलिए भविष्य में जब ये बजट आएगा तो असेसी के द्वारा लास्ट सबमिशन की जो फाइनल रिप्लाई की डेट और
एनईएसी के द्वारा फाइनल ऑर्डर पास करने की डेट में लॉ में 1 महीने का डिफरेंस कर दिया जाएगा। जिस तरह की हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ऑडिट रिटर्न फाइल करने की और ऑडिट का रिपोर्ट फाइल करने की डेट में 1 महीने का डिफरेंस सरकार द्वारा किया गया है कि हमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, असेसमेंट ईयर 20-21 का ऑडिट का रिटर्न फाइल, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर और ऑडिट का आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। 1 महीने का गैप है। इस तरह से हो सकता है अगले बजट में यह गैप सजेस्ट कर दिया जाएगा। So thereafter the final order will be served upon the assessee and जब ये फाइनल ऑर्डर assessee को सर्व हो जाएगा then jurisdictional AO के पास ये केस रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट jurisdictional AO के पास भी कभी भी कोई पर्सनल हियरिंग कहीं पर भी नहीं होने वाली है। And if modification is proposed in the draft order, the assessee or the authorized representative may request for the personal hearing। अगर assessee को ये जो modified order में कुछ सजेशन है कि सर ये जो आपने मेरा एडिशन प्रपोज्ड है इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, असेसी और हिज अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैज एनी ऑब्जेक्शन, देख ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द पर्सनल हियरिंग। पर्सनल हियरिंग के लिए फिर यह पर्सनल हियरिंग का रिक्वेस्ट कौन अप्रूव करेगा? यह रिक्वेस्ट चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल के द्वारा अप्रूव की जाएगी और यह पर्सनल हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। इसमें भी कोई पर्सनल मीटिंग अलाउड नहीं होगी। सीबीडीटी टू सेट अप द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर, इसमें फिर सीबीडीटी ने कहा साहब हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे एसएससी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार टैक्स कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा साहब हमारे इधर तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे गांव में एसएससी ने कहा साहब मेरे पास ना मोबाइल है ना मेरे पास कोई अदर फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो सीबीडीटी विल प्रोवाइड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर्स एट सुटेबल लोकेशंस इन इंडिया। हर शहरों में जहां जहां भी उन्हें सुटेबल आवश्यक लगेगा वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। एसएससी या उसका अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना पक्ष रख सकता है। पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब होगी? जब एसएससी रिक्वेस्ट करेगा ओनली तभी होगी, और जब भी एसएससी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं। अगर एक अधिकार एनईएसी को दिया गया है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इंचार्ज ऑफ द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में एट एनी स्टेज ऑफ द असेसमेंट इफ कंसिडर्ड नेसेसरी ट्रांसफर द केस टू द जुरिसडिक्शनल एओ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीबीडीटी। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डीजीआईटी बीइंग द इंचार्ज ऑफ द एनईएसी, उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी भी असेसमेंट को किसी भी स्टेज पर अगर उन्हें ऐसा नेसेसरी लगता है with the prior approval of the CBDT, they may transfer the case to the jurisdictional AO, but the jurisdictional AO will also hear the case only through video conferencing, not through personal meeting. फिर अभी यह जो REAC के लिए जो REAC और NEAC में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो पूरे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितना भी मैन पावर था, जितने भी चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, ITOs हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, उनके 2/3 मैन पावर को उन्होंने ई असेसमेंट में ट्रांसफर किया है, 1/3 पावर को उन्होंने रेज्यूडरी में ट्रांसफर किया। तो रेज्यूडरी मतलब वो जुरिसडिक्शनल वर्क देखेंगे। जुरिसडिक्शनल वर्क विल आल्सो बी डन ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉट थ्रू एनी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स। तो जो 1/3 मेन पावर रहेगा उनका काम क्या रहेगा? 1/3 जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर्स रहेंगे जिन्हें की ई असेसमेंट सेंटर में ट्रांसफर नहीं किया गया, उनका काम होगा रिकवरी ऑफ टैक्सेस, डिमांड मैनेजमेंट, रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग। 154 अगर किसी ने कोई फाइल किया है तो उसका ऑनलाइन जो भी प्रोसेस करना है वो रेज्यूडरी यूनिट के द्वारा किया जाएगा। एसएससी की कोई भी तरह की ग्रीवेंसेस है, रिफंड कम आया, टीडीएस का क्रेडिट कम मिला, या कोई 154 बाद में करना है, टीडीएस बाद में 26S में रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका क्रेडिट देना है, दोस ग्रीवेंसेस, या हमारा बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया, ऑल ग्रीवेंसेस विल बी रिजॉल्व्ड बाय द रेज्यूडरी यूनिट्स पासिंग ऑर्डर्स गिविंग इफेक्ट टू द अपीलेट ऑर्डर। सीआईटी अपील, आईटीएटी के जो ऑर्डर्स आएंगे उसका ऑर्डर पास करना। मैनेजमेंट ऑफ द केस रिकॉर्ड, जो फिजिकल केस रिकॉर्ड है या जो सॉफ्ट कॉपी में केस रिकॉर्ड एनईएसी के द्वारा जुरिसडिक्शनल एओ को ट्रांसफर किया गया है, उसका फिजिकल रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराना केस रिकॉर्ड अभी भी डिपार्टमेंट में फिजिकल रखा है, उसका मैनेजमेंट करना। और जो सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड आएगा, उस सॉफ्ट कॉपी में जो रिकॉर्ड आएगा उसका मैनेजमेंट भी उसे जुरिसडिक्शनल रेज्यूडरी यूनिट्स को करना होगा। आउटरीच प्रोग्राम, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेडर्स, एसएससीज के बीच में डिपार्टमेंट जाएगा
और उन्हें ट्रेनिंग देगा, बट ऑल दोस ट्रेनिंग विल आल्सो बी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉट थ्रू पर्सनल मीटिंग्स एंड नॉट थ्रू पर्सनल कॉन्फ्रेंसेस। फिर कहीं सर्वे अगर हुआ, 133A के सर्वे जो होते थे पहले, उसमें ये सर्कुलर था कि अगर कोई डाटा इंपाउंड किया गया है तो वह असेसमेंट फिजिकली किया जाएगा, वह फेसलेस में नहीं होगा। किंतु अब जो 13 अगस्त को ये स्कीम नोटिफाई की गई, इसमें अगर कोई असेसमेंट 133A में डाटा इंपाउंड किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड किए गए, वह असेसमेंट भी फेसलेस में ही होंगे। सो ऑल असेसमेंट एक्सेप्ट सच केसेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन विल बी डन अंडर द ई-असेसमेंट फैसिलिटी फेसलेस। फिर इन्वेस्टिगेशन विंग और कमिश्नर टीडीएस, उनका काम होगा, दे विल बी एक्टिंग फॉर सर्वे अंडर सेक्शन 133A। अभी तक 133A के सर्वे का अधिकार कमिश्नर को होता था या आईटीओ और एडिशनल कमिश्नर को होता था। फिर एक्ट में वो अधिकार चेंज करके एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर को दे दिया गया था। वह अधिकार भी अब सारा अधिकार उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया इन्वेस्टिगेशन विंग 133A। और टीडीएस का अगर 133A सबसेक्शन 2 का अगर कोई सर्वे, दैट विल बी ऑथराइज्ड बाय द सीआईटी टीडीएस, दैट विल नॉट बी अंडर द इन्वेस्टिगेशन विंग। प्रिंसिपल सीसीआईटी या सीसीआईटी टीडीएस के द्वारा टीडीएस के सर्वे अप्रूवल किए जाएंगे और 133A के सर्वे डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे। फिर एनईएसी के द्वारा एक शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा। अगर एसएससी ने कोई कंप्लायंस में कोई कमी की है, कंप्लायंस में कोई डिले कर दिया है, तो पेनल्टी का ऑर्डर उसके लिए नॉन कंप्लायंस का सेक्शन 272 कैपिटल ए का अगर कोई पेनल्टी लगाना एसएससी के द्वारा या एनी अदर पर्सन जिससे 133 सबसेक्शन 6 में या सेक्शन 131 में कोई समन दिया गया था और उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था उसमें कोई फॉल्ट हो गया, नॉन कंप्लायंस हुआ, तो उसकी जो भी पेनल्टी लगेगी वह शोकॉज नोटिस भी एनईएसी के द्वारा एसएससी को दिया जाएगा डिमांड नोटिस के साथ में। फिर पेनल्टी, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई वांट टू डिस्कस दैट पेनल्टी के लिए ये जो 13 अगस्त को स्कीम आई है और सितंबर 2019 में जो स्कीम नोटिफाई की गई थी, वह स्कीम केवल असेसमेंट के लिए है। सेक्शन 274 में पेनल्टी के लिए उन्होंने लिखा है कि हम एक अलग से स्कीम लाएंगे, सेक्शन 274 सबसेक्शन 2A एंड सबसेक्शन 2B, 2 कैपिटल B। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम पेनल्टी के लिए फेसलेस पेनल्टी भी होगी, फेसलेस पेनल्टी के लिए अलग से एक स्कीम नोटिफाई करेंगे। तो जहां तक मेरा अंदाज है, माय इंटरप्रिटेशन सेज दैट ये जो फेसलेस असेसमेंट की स्कीम है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल A। उसके लिए एक अलग से पेनल्टी की स्कीम आएगी, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि यह जो पेनल्टी एनईएसी के द्वारा लगाई जाएगी, एनईएसी के द्वारा पेनल्टी केवल वो लगाई जाएगी जो नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस बाय द एसएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग और नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी 133 सबसेक्शन 6 और 131 ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग। or the penalty under section 270 capital A will be initiated by the assessment unit, but penalty will be imposed by the jurisdictional AO in the faceless manner as specified under section 274. डिजिटल सिग्नेचर, एनईएसी के द्वारा जो भी ऑर्डर भेजे जाएंगे, जो भी नोटिसेस भेजे जाएंगे, वो डिजिटल सिग्नेचर से होंगे। अब लोग कहेंगे, हम कहेंगे कि साहब डिजिटल सिग्नेचर में तो जो व्यक्ति डिजिटली साइन करता है, तो डिजिटल साइन में राइट का निशान तो आता है, पर राइट के निशान के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने डिजिटल साइन किया है, और कई बार उसका ईमेल आईडी भी लिखा होता है। बट वी विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट विद दोस पर्संस, क्योंकि उसका नाम लिखा और उनका ईमेल आईडी, अगर आपने कोई ईमेल करने की कोशिश की तो हो सकता है डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ कुछ करे, इसलिए हम उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओनली बिकॉज ऑफ डिजिटल साइन their name and email ID will be appearing with the notice or order being served to us, but we will not be able to contact them, otherwise they may take any legal action against us if we will try to contact them through any email or phone. All notices shall be delivered to the assessee. assessee का जो email registered email ID होगा और registered mobile number होगा, उस पर नोटिसेस ईमेल आईडी पर नोटिस जाएंगे या assessee का ई-फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस अपलोड किया जाएगा, और हर नोटिस के अपलोड की या ऑर्डर के अपलोड करने की सूचना एसएससी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप भी डेवलप करेगा, मोबाइल ऐप पर भी एसएससी को यह ऑर्डर अपलोड किया जाएगा। पर हर ऑर्डर और नोटिस का एक रियल टाइम अलर्ट एसएससी को एसएमएस के द्वारा अवश्य भेजा जाएगा, और उसका एक ईमेल भी एसएससी को जरूर से दिया जाएगा। और हर नोटिस और ऑर्डर में एक DIN होना कंपलसरी, अदरवाइज उस नोटिस को नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर
कुछ बस अब मैं अपना 5 मिनट में यह सारा डेलिब्रेशन समाप्त करूंगा, अदरवाइज फेसलेस असेसमेंट की चर्चाएं वैसे तो बहुत लंबी 1-2 घंटे में भी समाप्त नहीं होगी, बट जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं बस वो अब मैं करूंगा। आरटीआई एक्ट, कई बार हम जाते हैं साहब, हमारा स्क्रूटनी में असेसमेंट जब फिजिकल होते थे, जब हम सीआईटी, बाद में हम सीआईटी अपील के पास जाते थे, बाद में हम आईटीएटी में जाते थे, तो कई सारा केस रिकॉर्ड हम असेसिंग ऑफिसर से जब फिजिकल मांगते थे हाई कोर्ट में, आईटीएटी में जाने के लिए, तो आरटीआई में हम ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लगाते थे। नाउ एवरीथिंग इज फेसलेस and every document is in soft copy with the NESE. So how we will obtain the documents in RTI? वैसे तो सारा डॉक्यूमेंट्स हमें भी अवेलेबल है, पर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि असेसमेंट यूनिट ने मेरा केस वेरिफिकेशन यूनिट को क्यों भेजा, किस ग्राउंड्स पर भेजा, वेरिफिकेशन यूनिट्स ने क्या रिपोर्ट दी इंटरनल, वेरिफिकेशन यूनिट ने कितना टाइम लगाया, रिव्यू यूनिट ने कितना टाइम लगाया, रिव्यू यूनिट ने मेरे ऑर्डर को, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को मॉडिफिकेशन क्यों सजेस्ट किया। ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू आरटीआई इन माय ओपिनियन, क्योंकि कोई भी असेसी को उसके असेसमेंट के खिलाफ इंटरनल कोई भी प्रोसेस भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, दैट विल बी इन द नॉलेज ऑफ द असेसी। जैसे कई बार हम सेक्शन 144 में हम स्क्रीन हायर फोरम पे इसीलिए जीत जाते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने हमारे बिना बताए, एट द बैक ऑफ द असेसी ही हैज ऑब्टेन्ड सम इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 131 और 133(6) एंड मेड एडिशन विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द हियरिंग। सो आरटीआई एक्ट में असेसी को ये सारी जानकारी मांगने का अधिकार है कि आपने 131 में, 133(6) में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। So in my opinion, all these things, all these actions of the RESE, NESE, assessment unit, verification unit, technical unit will be subject to RTI unless the act is amendment. RTI act में अगर कोई amendment हो जाता है कि ये internal process है, but in my opinion, these processes cannot be prevented from RTI. फिर एक इशू आएगा डिविजनल वैल्यूएशन ऑफिसर, डीवीओ को अगर कोई केस रेफर करना है, किसी की बिल्डिंग का वैल्यूएशन है, तो प्रेजेंटली तो बिल्डिंग का वैल्यूएशन जैसे सेक्शन 50C में एडिशन करना है, ड्यू टू डिफरेंस इन द रिटर्न ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो डीवीओ को रेफर किए बिना कोई एडिशन नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 50C का एडिशन, केवल ऐसा नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 70 लाख है, 30 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रार ऑफिस से जो AIR आया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेक्शन 285BA में आया, डिफरेंस आपने ऐड कर दिया। अभी रिसेंटली अहमदाबाद ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आया, रिसेंटली आया है, एक जगदीश भाई पटेल का जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर 50C में कोई एडिशन करना है तो असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट मेक एनी एडिशन विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस टू डीवीओ। तो इस तरह के फेसलेस असेसमेंट में अगर कोई एडिशन डीवीओ को किया जाएगा, हाउ डीवीओ विल डूइंग फेसलेस वैल्यूएशन, फेसलेस तो नहीं हो पाएगा उसमें। So that assessment, that valuation will be done, I think, with the physical interface with the assessee also. So there will not be any faceless in case of valuation. Otherwise, such assessments will be in favor of the assessee at higher forum. Set aside cases. ITAT ने या हाई कोर्ट ने कोई केस सेट असाइड AO को कर दिया है, तो सेट असाइड के केसेस भी फेसलेस मैनर में ही होंगे, ऑनलाइन होंगे, न कि जुरिडिक्शनल AO के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ये भी फेसलेस मैनर में होंगे सेट असाइड केसेस भी। फिर हमें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगले वर्षों से इतना सारा ऑनलाइन डाटा अवेलेबल होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें प्री फिल्ड ITR और अच्छी तरह से प्रोवाइड करेगा। अभी भी प्री फिल्ड ITR आना चालू हो गए, बट अभी कुछ डाटा उनके पास कम है। फ्यूचर में उनके पास इतना सारा डाटा होगा, हो सकता है बच्चे की स्कूल फीस की इंफॉर्मेशन होगी, साहब स्कूल की फीस आपने भरी 4 लाख रुपए, असेसी ने रिटर्न इनकम बताई 2.5 लाख, तो उन्होंने कहा जब बच्चे की स्कूल फीस आपने 4 लाख भरी है, आपका विड्रॉल भी 4 लाख होगा, आपकी कार का एक्सपेंसेस 2 लाख होगा, तो आपकी रिटर्न इनकम 10 लाख से तो अधिक ही होना चाहिए। आपकी LIC प्रीमियम 1 लाख है, सो योर इनकम कैन नॉट बी 2.5 लाख। सो प्री फिल्ड ITR में उस तरह से वो अदर इनकम में बता करके दे कैन डू द प्री फिल्ड ITR। विदेश की कई सारी कंट्रीज में प्री फिल्ड ITR आते हैं और इवन दे टैक्स डिटरमाइन, यूके के अंदर वो टैक्स डिटरमाइन करके भेज देते हैं कि आपका टैक्स इतना है। अगर टैक्स में ऑब्जेक्शन है, देन यू शुड कम टू द इनकम टैक्स ऑफिस थ्रू द फेसलेस मैनर। यूके में भी फेसलेस है, दे विल अप्रोच टू द इनकम टैक्स, नहीं साहब आपने मेरा प्री फिल्ड ITR में जो टैक्स डिटरमाइन किया वो गलत किया है। तो अदर कंट्रीज में इवन टैक्स भी डिटरमाइन हो रहा है। अभी इंडिया में टैक्स डिटरमाइन तो नहीं करेंगे, बट इंडिया का जो भी फेसलेस सिस्टम इन्होंने अभी सारा बताया है, ये फेसलेस सिस्टम वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अच्छे से अच्छे सिस्टम को कंपेयर करने के लिए इंडिया का सिस्टम बहुत एडवांस है। इंडियन टैक्स दिस फेसलेस सिस्टम इज वेरी एडवांस एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पर प्री फिल्ड ITR हमें मिलना चालू होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी भी
असेसी के पास फिजिकली जाने का अधिकार केवल एक कंडीशन में होगा कि प्रीफिल्ड आईटीआर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के आधार पर अगर डिपार्टमेंट ने असेसी को कोई नोटिस भेजा इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए, असेसी को ईमेल भेजा, असेसी को एसएमएस भेजा, तो भी असेसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ऑनलाइन पोर्टल पे असेसी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा है, असेसी अपना ईमेल को एक्सेस नहीं कर रहा है, ईमेल बाउंस बैक होकर आ गया, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये शंका होगी कि ये असेसी फेक है, ये पैन नंबर फेक है। तो इस केस में असेसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक व्यक्ति को फिजिकली उस पते पर भेजेगा, तो उस पते पर वह व्यक्ति जाके वेरीफाई करेगा कि यह पता असली है या नकली है, यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है। यह इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को देगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस असेसी का केस 143(2) में फेसलेस मैनर में स्क्रूटनी में लेगा। तो स्क्रूटनी के पहले असेसी का अगर कोई नोटिस सर्व नहीं होता है तो उसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ टैक्स पेयर विल बी डन। जैसा हमें मालूम है फ्यूचर में और अभी भी जीएसटी रिटर्न में जो हमारा डाटा जा रहा है वह इनकम टैक्स रिटर्न से मैच किया जाएगा। तो हमें हमारा जब भी हमारे असेसी का हम ऑडिट या आईटीआर फाइल करते हैं, वी शुड मैच द जीएसटी टर्नओवर विद आवर आईटीआर। पेन कोटिंग रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर आपका असेसमेंट यूनिट ने आपसे मांगा कि आपके साल भर में 2 लाख से अधिक के जो भी सेल्स बिल हैं उनके 50 बिलों की हमें फोटोकॉपी भेजिए हर महीने के 1 तारीख को। जो भी 2 लाख से अधिक के सेल बिल आपने फाड़े, या मान लिया ज्वेलरी का बिजनेसमैन है या कार का सेलर है, कार सेल में तो मोस्टली पैन नंबर ले लेते हैं, कई ज्वेलरी के सेलर ने अकाउंट पे चेक से पैसा ले लिया, उन्होंने पैन नंबर लेना भूल गए बायर से। तो एज पर रूल 114(b) सेक्शन 139(a) सबसेक्शन 5 the seller is required to obtain the PAN number of the buyer in case of any sale individual sale exceeds ₹2 lakh। अगर कोई भी सेल किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो 2 लाख से अधिक है, देन बायर और सेलर का पैन नंबर उस सेल बिल पे या हर ट्रांजेक्शन पर, हर डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होना कंपलसरी। तो आपने उन सेल बिलों की कॉपी असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड करा दी। अब असेसमेंट यूनिट ने देखा कि उन सेल बिलों की फोटोकॉपी के ऊपर बायर का पैन नंबर नहीं लिखा, आपने 2 लाख से अधिक के सेल बिल कर दिया, आपने कैश में किया, तो सेलर को सेक्शन 269(st) में पेनल्टी लग जाएगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्टेड एज पर 71(d)(a). और अगर आपने चेक से कलेक्ट किया है किंतु बायर का पैन नंबर नहीं लिखा है तो सेलर को 10,000 रुपए प्रति बिल, अगर आपने 50 बिल दिए तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी सेक्शन 272(a) में लग जाएगी फॉर नॉन कोटिंग ऑफ द पैन नंबर। आपने पैन नंबर नहीं कोट किया, सो एज पर सेक्शन 139(a) सबसेक्शन 5 रूल 114(b) यू हैव कमिटेड ए डिफॉल्ट ऑफ कोटिंग द पैन नंबर। या आपने 50,000 से अधिक का अभी होटल बिल है, उसमें बायर का कैश बिल है, पहले चेक था फिर उसको बाद में उन्होंने हटा के 50,000 से अधिक का कोई कैश बिल होटल का होता है तो बायर का पैन नंबर होटल वाले के पास होना कंपलसरी है। अब इस 50,000 की लिमिट को ऐसा सुनने में आ रहा है कि घटा करके 20,000 किया जा रहा है, पर 20,000 चेक के लिए होगा या कैश के लिए अभी ये बताया नहीं गया है। तो ये जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या रूल 114(b) में नोटिफाई किया जाएगा कि ये 20,000 की जो होटल बिल की लिमिट है चेक के लिए लागू होगी या कैश के लिए, आने वाले समय में नोटिफिकेशन आएगा सीबीडीटी से। पर हमें हमारे जो भी होटल क्लाइंट्स है, ज्वेलरी क्लाइंट्स हैं, उन सबको एजुकेट करना होगा। स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले 1 लाख से अधिक की फीस अगर बच्चों से रिकवर करते हैं तो उनके फादर का पैन नंबर स्कूल को ऑब्टेन करना जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में स्कूल विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फीस कलेक्टेड बाय देम फॉर ईच चाइल्ड एक्सीडिंग ₹1 lakh in a year, so they will be required to obtain the PAN number, otherwise they will be penalized with 10,000 each student। अगर उन्होंने 100 स्टूडेंट के पैन नंबर नहीं लिए तो स्कूल को पेनल्टी लग जाएगी। फिर जो फेसलेस असेसमेंट है इसमें टीडीएस के जो असेसमेंट होंगे, जिसको टीडीएस की लाइबिलिटी, टीडीएस में जनरली असेसमेंट नहीं बोला जाता, टीडीएस की लाइबिलिटी जो सेक्शन 201 में डिटरमाइन की जाएगी। कई बार टीडीएस का सर्वे होता है तो सर्वे के बाद उसका 201 में टैक्स डिटरमाइन किया जाता है कि कितना डिफॉल्ट है, तो वो टैक्स डिटरमिनेशन फेसलेस में नहीं होगा, अभी उसके लिए कोई स्कीम नहीं है ये, बट दैट विल बी डन इन माय ओपिनियन बाय द सीआईटी टीडीएस और बाय द एसीआईटी डीसीआईटी टीडीएस इन ए फेसलेस मैनर। उसके लिए बताया नहीं गया, बट दैट विल इन माय ओपिनियन विल बी डन इन ए फेसलेस मैनर और थ्रू ऑनलाइन, बट नॉट थ्रू फिजिकल विजिट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर अपील जो भी होने वाली है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी 13 अगस्त को अनाउंस किया है कि 25 सितंबर 2020 से सारी अपील भी ऑनलाइन हो जाएगी, फेसलेस हो जाएगी। ऑनलाइन तो अपील अभी चल ही रही थी, ऑनलाइन अपील ऑलरेडी हम पिछले 1-2 सालों से हम हमारे ऑनलाइन रिप्लाई फाइल कर रहे हैं अपील में, बट दोज वर ओनली द ई प्रोसीडिंग टैब में थे, पर अब यह भी फेसलेस हो जाएंगे। सो CIT appeal is also going to be jurisdiction free from 25th September 2020. So
अगर 13 अगस्त से बीच में 13 अगस्त से लगाकर 25 सितंबर 20 के बीच में अगर कोई सीआईटी अपील ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, दैट मे बी सब्जेक्ट टू सस्पिशन, उसमें शंका हो सकती है डिपार्टमेंट को। इसलिए मेरी ओपिनियन में शायद कोई भी ऐसे सीआईटी अपील अभी ऑर्डर पास नहीं कर रहे होंगे। एंड आई ऑल्सो वेलकम कि कई बार सीआईटी अपील आपको रिलीफ देना भी चाहते हैं, बट सीआईटी अपील आपको रिलीफ लॉ पॉइंट पे देना चाहते हैं, फिर भी वो डरते हैं कि साहब मेरी हो सकता है डिपार्टमेंट को शंका हो जाएगी मैंने आपको 1 करोड़ का रिलीफ दे दिया, सो आई हैव नो पावर टू गिव यू रिलीफ इवन इफ योर केस इज डिजर्विंग एज पर द जुडिशियल प्रेसिडेंट. So they doesn't allow us relief. Now in the faceless we will be free because faceless में किसी पे कोई suspicion departmental officer पे नहीं होने वाला. So as per the judicial precedent and as per the law we will be getting relief even of the crore of rupees from the CIT appeal. Otherwise कई बार CIT appeal को मालूम है ये केस deserving है, but वो कहता नहीं साहब इसको तो आपको ITAT हाई कोर्ट में रिलीफ मिलेगा because I am not able to give you so big relief to my own department. Against my own department में कैसे जा सकता हूँ? So now the department will do as per the law and judicial precedents. फिर एडिशनल एविडेंस अगर अब भविष्य में हम कोई भी सीआईटी अपील के पास प्रस्तुत करेंगे तो 1 मिनट में डिपार्टमेंट को ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज सीआईटी अपील के पास जो हमने एनईएससी को या असेसमेंट यूनिट को जो पेपर्स प्रोवाइड किए थे वो उनके पास सॉफ्ट कॉपी में वहां से मेल से आ जाएंगे. उसके अलावा अगर आपने कोई भी एविडेंस दिया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए एडिशनल एविडेंस. सो इन माय ओपिनियन वी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी एविडेंस except our written submission before the CIT appeal during the faceless assessment because they will get this from the department itself. फिर फेसलेस अपील की स्कीम की डिटेल अभी आने वाली हो सकता है 25 सितंबर के पहले तो आई जाएगी शीघ्र. सेक्शन 250 में फाइनेंस एक्ट 2020 में फेसलेस अपील के लिए अमेंडमेंट किया गया था कि दैट विल बी जुरिडिक्शन फ्री, दैट विल बी डायनामिक एंड देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेस बिटवीन द CIT अपील एंड द अपीलेंट. सो दिस इज ऑल माय डेलिब्रेशन ऑन द faceless assessment and faceless appeal. So thanks a lot to all of you and thanks a lot to our North Zone and UP Tax Bar Association and all the office bearers. Thanks a lot to all. Now I hand over the mic to Vikram Chawla ji. Thank you राजेश जी, thank you. ये तो आपका इतना ज्यादा elaborate हो गया, मुझे तो लग रहा था कि अपील का मिला के और असेसमेंट का मिला के भी शायद इतना टाइम ना हो पाए, लेकिन तो असेसमेंट में ही इतना टाइम निकल गया है. आपके पास बहुत मैटर था, यू आर थॉरली वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड इसमें अगर हम आगे चले, आई लाइक टू जॉइन इन रिक्वेस्ट मिस्टर पुनीत कुमार सिंह, सेक्रेटरी ऑफ AIFTP नॉर्थ जोन, टू जॉइन अस फॉर अ शॉर्ट पैनल डिस्कशन एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन. पुनीत, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. Sure. So you can join us for the short discussion and the question answer session. राजेश जी, सबसे पहले जो मुझे लगा इसमें एक फील आई बिहाइंड दी फेसलेस स्कीम, कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स पे विश्वास नहीं है? कुछ ऐसी फील आई सारे से. अब इस चीज को ज्यादा हम क्या सोचें और क्या बोलें इस विषय में, किंतु सरकार के पास कई सारी चीजें हो सकता फ्रंट में नहीं जाती, पर गवर्नमेंट हैज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कि असेसी कई बार परेशान है. हाई पिच असेसमेंट है, हाई पिच असेसमेंट में फिर डिमांड रिकवरी हो रही है तो उसके बाद असेसी भरता नहीं है, बोले साहब ये तो हाई पिच असेसमेंट हो गया तो मैं तो भर नहीं सकता, 1 करोड़ की डिमांड है, मेरा एडिशन आर्बिट्रेरी हो गया है, सो आई विल गो. और इधर अब डिपार्टमेंट ने कह दिया आपको इतना भरना जरूरी, 20% भरोगे तब CIT अपील में अपनी अपील को स्टे ग्रांट करेंगे हम. तो इस तरह की चीजें उनके नॉलेज में डेली आती है. इसी कारण से गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड सिंस लास्ट मेनी इयर्स, धीरे स्टेप वाइज करके फेजेड मैनर में. पर अब उन्होंने जो किया दैट इज फुल प्रूफ सिस्टम एंड दैट इज 100% फेसलेस. धीरे बरसों लग गए इस चीज को फेसलेस तक आने में, बट नाउ दिस इज फेसलेस. तो अब उन्हें हो सकता है डिपार्टमेंट पर अपने आप में किसी भी कारण से, हो सकता है उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो, इसलिए उन्होंने टेक्निकल यूनिट अलग बनाई है. पहले असेसिंग ऑफिसर हिमसेल्फ वाज कॉम्पिटेंट. कई वर्षों पहले आपने देखा होगा जब हम असेसमेंट में जाते थे तो एडिशनल कमिश्नर से हर स्क्रूटनी असेसमेंट अप्रूवल होता था. फिर बाद में वो बंद हो गया, कुछ ऑफिसर्स ने उसका विरोध किया, नहीं साहब हमारे अधिकार में वो इंटरफेयर कर रहे हैं. तो ऐसा कई सारे विरोध चलते रहे कई वर्षों तक. पिछले 15-20 सालों में कई चेंजेस हुए असेसमेंट में, पर अब उन्होंने जो फुल प्रूफ सिस्टम लगाया तो अब नाउ देयर विल, इसका कोई विरोध जहां तक मेरा अंदाजा न असेसी करेगा, न टैक्स पेयर करेगा, न टैक्स कंसल्टेंट करेगा, न डिपार्टमेंट करेगा, एंड ऑल विल बी इन द विन-विन सिचुएशन. लेकिन एक फील आई इससे सारे से मिलके, इसके साथ भी, कि अब जो असेसमेंट है पहले हम एक असेसिंग ऑफिसर से डील करते थे, नाउ वी विल बी डीलिंग विद अ फुल बेंच एंड अ फेसलेस बेंच. तो अब या वन पर्सन वर्सेस आई डोंट नो हाउ मेनी,
यस यस यस। अब पहले हम असेसमेंट ऑर्डर आता था तो बड़ा आसानी से हम सोचते थे कि इस केस को जब हम सीआईटी अपील या आईटीएटी में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, बिकॉज असेसिंग ऑफिसर ने कई सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ की मिस्टेक करी होगी। बट नाउ वी विल हैव टू थोरोली मूव, हमें उस ऑर्डर को कम से कम 10 बार रिव्यू करना होगा कई सारे केस लॉ और लॉ के आधार पे। एक गलती जैसे डिपार्टमेंट मेरे अनुसार कर सकता है, अब ये कभी हो सकता है कोई सुन ले डिपार्टमेंट वाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट फिर भी बताना तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी सीक्रेट चीज बाहर जाएगी तो केस लॉ के थ्रू भी बाहर जा सकती है भविष्य में। कि डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर एसएससी ने 142(1) का जवाब नहीं दिया तो हम 144 में असेसमेंट कर देंगे। मेरी ओपिनियन में जब सेक्शन 144 को हम पढ़ते हैं तो 144 में लिखा है कि इफ द एसएससी फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स ऑफ 142(1) नोटिस, तो ऑल मतलब अगर एसएससी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट 4 142(1) के नोटिस दिए गए, चारों का जवाब नहीं दिया गया, तो मेरी ओपिनियन में 144 हो सकता है। अगर 4 में से एसएससी ने एक रिप्लाई फाइल कर दिया या ओनली 142(1) का एक ही नोटिस दिया गया, एक नोटिस में उसे 5 क्वेरीज की गई, 5 क्वेरीज में उसने एक रिप्लाई दे दिया, 3 रिप्लाई नहीं दिया, देन इन माय ओपिनियन दैट केस विल नॉट गो टू 144। इस तरह के केस को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि साहब ये 144 का उन्होंने लॉ फॉलो नहीं किया, बिकॉज ऑल टर्म्स लिखा है 144 में, लिखा ऑल द टर्म्स, वहां नहीं लिखा है कि एनी ऑफ द टर्म ऑफ द 142(1). तो इस तरह के पॉइंट्स हमें बड़ा बारीकी में लॉ के अंदर जाके ऑर्डर में ढूंढना पड़ेंगे, अदरवाइज हमें बोलना पड़ेगा एसएससी से, भाई साहब आप टैक्स भर दीजिए, हमारा बस स्क्रूटनी फेसलेस असेसमेंट की फीस का बिल इतना हुआ, ये दे दीजिए, बाकी यू शुड नॉट कंटेस्ट इट बिफोर हायर फोरम। तो फिर अपील की फीस भी वही ले ले फिर। अपील की फीस फेसलेस में सर, तो फेसलेस अभी तक हम स्क्रूटनी असेसमेंट की फीस 10,000 मांगते थे, अब फेसलेस में हमें आईटीएटी लेवल तक की तैयारी करना होगी, सो हमारी फीस अब आई थिंक 50,000 हो सकती है। Yes. Then that's it. Absolutely very serious point. Very serious point. Yes. पुनीत जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, कुछ कहना Yes, मेरा एक क्वेश्चन है राजेश सर के लिए। वी आर कमिंग इनटू अ न्यू नॉर्मल नाउ, ये अब हम लोग के लिए नया नॉर्मल होने वाला है, वेयर वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ई रिटर्न्स टू ई असेसमेंट एंड देन टू फेसलेस असेसमेंट एज वेल एज फेसलेस फर्स्ट अपील्स। एक ये पूरे डेलिब्रेशन में एक क्वेश्चन जो अराइज करता है, इट इज रिलेटेड टू सर्वे केसेस। सर्वे केसेस को सर फेसलेस के एम्बिट में रखना, वेयर एज सर्च केसेस को उससे एक्सक्लूजन्स में रखना, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? सर्वे केसेस को सर, वैसे सर्वे केसेस में जहां तक मेरा अंदाज है या तो डिपार्टमेंट से अभी कोई भूल हो गई है, क्योंकि पिछला जो फेसलेस का जो सर्कुलर्स आए थे, उस सर्कुलर्स में, स्क्रूटनी के सर्कुलर में ये था कि अगर सर्वे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड किए गए हैं, then those assessment will be done manually because impounded documents have to be cross examined physically, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी को असेसी चैलेंज कर सकता है कि साहब ये डिपार्टमेंट के पास जो ये डॉक्यूमेंट है, डिपार्टमेंट ने फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके मेरे सर्वे डॉक्यूमेंट में रख दिया है, सो असेसी में चैलेंज इट एट हायर फोरम। सो डिपार्टमेंट हो सकता है या तो इसे अगर नहीं तो एसएससी में चैलेंज इट कि डिपार्टमेंट ने साहब फर्जी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके मुझे लगा दिया, मुझे बताया नहीं, और इसकी मेरे को तो फॉरेंसिक जांच करवाना इस डॉक्यूमेंट की, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट पर्टेन टू यू बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट इन ए ओरिजिनल मैनर, व्हाट डॉक्यूमेंट इज लाइंग विद द डिपार्टमेंट। इसलिए मेरे अनुसार इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट जिस तरह से सर्च केसेस होंगे उसमें होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर एसएससी ने जितना सरेंडर किया है उतना उसने अपने रिटर्न में इंक्लूड कर दिया, then those assessment may be done in a faceless manner, and in those cases there may not be any requirement of assessment also because the surrendered income has been included। ऐसे सर्कुलर है पहले। Yes. राजेश जी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, I was going through the chat box, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जवाब आपने इस दौरान दे दिया है, so I will try skip that, कि लोगों ने शुरू में डाल दिए थे क्वेश्चंस, but still I'll try to take maximum question, और लेकिन जो repetitive है या otherwise उनको स्किप करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम मिस्टर रविंद्रन। ही सेज व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द एग्जिस्टिंग पेंडिंग केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2018? जुडिशियल ऑफिसर हैज इशूड नोटिस अंडर 142(1) वेयर रिप्लाई वाज पेंडिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखिए, आपने अगर कोई असेसमेंट ईयर 2018-19 का नोटिस है जिसका ज्यूरिसडिक्शन एओ से आपको कोई नोटिस आ चुका है, तो 13 अगस्त के बाद यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी ऑफ द रिप्लाई बिफोर योर ज्यूरिसडिक्शनल एओ। All such assessment will be shifted to the NESE and the NESE will be giving you the notice in a faceless manner. So you are not required to appear before your jurisdictional AO, and jurisdictional AO will also not consider and will not entertain us. Thank you.
Then Deepak Goyal is asking, in a faceless scrutiny assessment in section 50C valuation difference issue, DVO opportunity will be physical or faceless? Yes, DVO opportunity will always be physical, because DVO is a different department, and that cannot be done in, I think, a faceless manner, because they have done the income tax department in a faceless or through video conferencing. But in case of DVO, the DVO will physically go to your place, so you cannot hide the face of the DVO. So this will be physical. Otherwise, if only difference is, as I have already told, there are so many judgments of high courts and tribunals. Without doing any valuation, 50C addition cannot be made. Then Speaker Sahuji is asking whether the system of assessment will be SSC friendly. What is It will be it will be assessee friendly, and it will be tax. It will be the tax consultant friendly, and it will also be friendly to us. There will not be any harm, because earlier we do not used to ask for fees from our client, because we were ourselves not aware what is going to happen in the assessment. Now, looking at the documents being furnished by our client during the preparation of the reply, we can judge what is going to happen with our case. So now we can outrightly ask for the fees from so it is assessee friendly as well as the tax consultant friendly. Sunil Saraf is asking what will happen in cases where remand report is asked by CIT appeals and the same is not furnished by 25th September. Existing cases. Same is not furnished? By 25th September. I think he's talking about existing appeals. In my opinion, if any of the remand report is pending after 13th August 2020, and if any of the appeal order is pending after 13th August 2020, when the Prime Minister announced the faceless appeal, effective from 25th September. In my opinion, such all cases will be shifted to the faceless. No order will be passed by any of the CIT appeal. Otherwise, such orders may be subject to suspicion by the department. If CIT appeal do the order, no problem. And if remand report is asked for from the client, from the assessing officer, he may submit it, because department jurisdictional unit is, however, all these have become faceless, so they will submit it through the email to the CIT appeal. They will not submit the physical report to the CIT appeal. Then Deepak Lohia is asking, other than faceless assessment, assessee may approach to the jurisdictional AO for refund and other issues. Will that be possible? Any of the issues which I have shown, if any of the issues are not pertaining to assessment, like 154 application, any other grievance of non-credit of the TDS, he may approach to the jurisdictional AO, but only through e-filing portal, not physically to the income tax department. Only through e-filing portal, 154 will automatically be transferred to the jurisdictional AO by the computer system itself. Then Mr. Sanjay Kapoor is saying, does it mean that now protective as well as substantive assessments cannot be made? No, protective substantive will also continue, no problem. Protective substantive will also be done through NESE. Assessing officer may say that this assessment will be protective, this will be substantive. So if any, however, it is not required as per the law. Protective and substantive as per the principle of various other as per the Constitution of India and any other cases, this protective and substantive can be made even if it is not mentioned in the Income Tax Act as present. And if any such shortcomings come to the knowledge of the income tax, they will amend these by way of notification, or they will amend these in the forthcoming budget, which will be coming in the February 2021. There will be lot many amendments is based on the faceless assessment and faceless appeal and faceless penalty. So, Mr. Baidyanath Agarwal is raising a doubt. Can the AU contact the assessee by the phone number available on the ITR? First of all, पहले हम ऐसा सोचते थे जैसे कि डिपार्टमेंट को भी एसएससी का कुछ मालूम नहीं पड़ेगा,
और असेसी को तो डिपार्टमेंट का मालूम पड़ने वाला नहीं कि असेसमेंट यूनिट में कौन कर रहा है, बट पहले ऐसा सोचा जा रहा था आज के साल 2 साल पहले कि फेसलेस में डिपार्टमेंट को ना असेसी का पैन नंबर मालूम पड़ेगा ना पता मालूम पड़ेगा, बट दिस में नेवर बी प्रैक्टिकल, दिस विल नेवर बी प्रिज्यूम। तो डिपार्टमेंट को तो असेसी का पैन नंबर पता सब जानकारी है, बट नन ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसर विल एवर टेक एनी रिस्क टू कॉन्टेक्ट एनी ऑफ द असेसी। कलकत्ता में बैठे एसएससी को अगर मालूम है कि इंदौर में ये सीए का एड्रेस है, सीए ने अपने लेटर हेड पे रिप्लाई दिया है, अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव का लेटर हेड उसने दिया है, एसएससी का इंदौर का फेमस एसएससी इवन दो और कलकत्ता का ऑफिसर जानता, ही विल नॉट टेक एनी रिस्क, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि अब हमें क्या करना है अगर कोई इस तरह से करता है। सो दे विल नन विल टेक एनी रिस्क। Mr. Panda wants to know what would happen in cases of cross-examination of third-party statement books of accounts. Cross examination so far possible will be first of all done through either email or through the e-filing portal only. Even if assessee requires that cross examination नहीं सा principal और natural justice के खिलाफ है, मुझे तो face to face cross examination करना है, then that will be transferred to the jurisdictional AO and by way of video conferencing the assessee and the both parties will be doing the video conferencing with the permission of the principal, CCIT or DGIT. Puneet ji, would you like to add something to this? Is point pe? No, sir, I feel it's been covered very well. There will be a lot of questions coming up when we actually start with these assessments and these appeals. So we should wait for that. Abhi bahut sari information aa gayi hai. We should digest this and try to use it from now on. हाँ, एक remark जरूर है कि as professionals and even for the assessees, we should become hyper vigilant in our initial submissions now. We should not be missing out on any critical facts, and we should check and recheck everything again before uploading it. Yes, yes. बिल्कुल सही कहा पुनीत जी, क्योंकि कोई भी अब हम जो हमारा रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, that should not be less than the high court level submission. अब हमारा यही रिप्लाई हाई कोर्ट और सीआईटी अपील और आईटीटी सब जगह काम आने वाला है, ये सबमिशन हमारे काम आएंगे। तो इस तरह के सबमिशंस को हमें चेक रीचेक करना चाहिए, अदरवाइज हमारा एसएससी का एडिशन अगर एक बार कंफर्म हो गया, वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी रिलीफ इवन एट हायर फोरम्स। तो हमें, क्योंकि अगर असेसमेंट यूनिट कोई भी एडिशन करेगी तो वो मोस्टली बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और स्ट्रॉन्ग लॉ, इसलिए हमारा रिप्लाई ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो हमने काफी कुछ कवर कर लिया एंड वी आर मोर और लेस विद इन द टाइम लिमिट वी एक्सपेक्टेड, जबकि हमने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली 5 मिनट लेट चल रहे हैं उसी से। सो गणेश जी, आई होप सो आई हैव केप्ट अप द टाइमिंग एज यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड मूविंग ऑन, बिफोर आई कॉल अपॉन श्री AK Srivastava, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द AIFTP North Zone, टू सम अप द टॉपिक, आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक। और अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट वीक सैटरडे 29th August 2020 को वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल कॉन्क्लेव एंड द टॉपिक इज हजार्ड्स एंड रेमेडीज इन एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स अंडर GST। हजार्ड्स एंड रेमेडीज इन एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स अंडर GST। और हमारे पास स्टार स्पीकर रहेंगे इन द नेक्स्ट वीक। लंबा प्रोग्राम है, लगभग 3 से 4 घंटे चलेगा और टॉपिक वर्निंग है और स्पीकर्स भी हमारे पास स्पेशल है। श्री उचित सेठ एडवोकेट फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट, श्री S वेंकटरमणी FCA बैंगलोर, श्री पंकज घिया एडवोकेट जयपुर हाई कोर्ट एंड श्री JK मित्तल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा we'll have the conclave chairman श्री PC जोशी एडवोकेट फ्रॉम मुंबई हाई कोर्ट एंड ऑफ कोर्स Ganesh Purohit ji would be the guest of honor, and ML Patodi advocate Kota would also be there with us, and this would again be a joint effort, a program presentation of Gyan Jyoti and Liberation series of virtual seminars. Next Saturday के लिए आप mark कर लीजिएगा, detailed notification आएगा। Now we'll request the Vice President of AIFTP North Zone, Mr. AK Srivastava, to kindly sum up the proceedings. Thank you, Vikramji, for asking me to sum up. I think this particular issue of faceless assessment being new, the only time would tell how and what precautions we have to take so that our SSCs do not suffer. A good number of things have been pointed out by my friend Rajesh ji from whatever his ever
available at present. But a couple of issues which in the beginning were taken up by our past President Shri Ganesh Purohit ji, that reference to documents uploaded. Now that's going to be a big issue. The interpretation of document, to what extent, when we point out, we generally would say we refer to this particular paragraph of this particular document. Now, how would it interpreted by the officers would again be a big issue, which may take many turns. That we reply, there is a counter reply by them, a explanation. Only time would we be able to tell. But one thing that I noticed, a change in the notifications on in August, on 13th August, which is the notifications issued in 2019, is that the present notification does permit granting of additional time to reply, which was generally not there, which was, we noticed, was not there in the 2019 notifications. That is a big relief. And also that maybe there may still be some cases which are which do not fall under the faceless scheme provision. The enabling power given in para 5.2 of this, the new notification, does empower the Chief Commissioner or Principal Chief Commissioner of NEAC with the approval of the CBDT to refer the matter to a particular jurisdiction officer. And the general impression that the jurisdictional officers will have no role may probably not be 100% correct. In some cases, they may still have a role. But then all the steps taken by the government are definitely laudable. We have been agitating against the misdeeds done in the department. I'm specifically using the word misdeeds because knowing that what they're doing is wrong, they would still insist upon it and tell us, कि साहब मैं तो ये कर रहा हूँ, आपको लगता है गलत है, आप कमिश्नर के पास चले जाइए, कमिश्नर अपील में चले जाइए, एंड कमिश्नर अपील के पास जब आप जाते हैं, they will tell you कि साहब आप ट्राइब्यूनल में से ऐसे ये रिलीफ ले लीजिए, we cannot help you. आनंद जी ने एक दो इश्यूज रेज किए थे, 154, 263, 264. In this change scenario, I wonder what will be the role, how would 263 will become operative now? If an issue has been looked in by not only by one unit, by one officer, it's a batch of officers, the assessment unit, verification unit, technical unit, review unit, and then you pass an order. Whether in such cases, how do you justify a 263 order? मेरे ख्याल से तो हम लोगों को आगे टाइम से कम विल हैव टू, और भी के साथ ये तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ फाइन का मतलब ही नहीं है, और नॉन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये एक ने नहीं, चार लोगों ने 4 स्टेजेस पे ये चीजें हो चुकी. तो दैट विल बी समथिंग मे बी इन टाइम्स टू कम वी मे नॉट हैव 263 orders. I think Rajesh ji would agree. And in the end, I will request we have amongst ourselves our past president, Mrs. Premlata Bansal, senior advocate. I think we should have her comments also. And I would only state that it's a well presented paper by my friend Rajesh ji, and it's given insight into what the government is thinking. Thank you. Thank you, Srivastava ji. Well suggested. I would like to invite Premlata Bansal ji, past president AIFTP, to kindly give her closing remarks on the issue. Mr. Bansal ji. Thank you, sir. Respected Ganesh Purohit, our speaker, organizers of North Zone, Asim Jafar Saab, Punit Singh, Vice President A.K. Srivastava ji. सबसे पहले, first of all, I want to congratulate Rajesh Mehta ji. It's a wonderful deliberation, I must say.
I was thinking कि e-assessment or faceless appeals and faceless proceeding, what is so much material that we can hear for 1.5 or 2 hours. But Rajesh ji, in a spellbound manner, in a pin drop silence, such a wonderful deliberation you has given that I must congratulate you, sir. Sir, for the first time I have heard on this subject, and I must that you have done a commendable job. Secondly, sir, apart from this deliberation, you have made the point so clear that there remains no controversy in it. That is second. Third thing, what I want to say, that the file will be created in the department as well as by the SSC. So, as and when the notice is received from the department, the council of the SSU has to maintain the file properly. What is the notice received? What is the reply given? What are the evidences filed by the SSC? And what is the opinion of the AU and verification unit and all that? Everything has to be kept in a proper manner so that in appeal, SSC or the council may not face any difficulty. So recording and keeping the report, keeping the record in a proper manner, that is very essential. Fourthly, what I want to say, that SSC has a right to file evidence. Rule 46A cannot be curtailed in any manner. So whatever evidence has been filed during the assessment proceeding, sometimes it happens that some evidences could not be filed before the assessing officer because that is beyond the control of the SSC or whatever may be the reason. There may be so many reasons. हो सकता है कि उस टाइम SSC के पास वो डॉक्यूमेंट ना हो और बाद में मिला हो, जैसे कि GST डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है या किसी और डिपार्टमेंट से निकलवाना है, तो उस टाइम नहीं प्रोड्यूस कर सकता, या तो कोई क्रेडिटर का या डेटर का डॉक्यूमेंट है वो नहीं प्रोड्यूस. तो SSC has a right to file the additional evidence at the time of appellate proceeding. बट ये सब कब हो सकता है कि जब हम रिकॉर्ड प्रॉपर मैनर में मेंटेन करेंगे तभी, अदरवाइज तो नहीं हो सकता. तो मुझे लगता है, व्हाट आई फील, that there are so many obligations on the tax consultant as well. पांचवी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब SSC जो भी डॉक्यूमेंट देता है, वो राजेश मेहता जी ने बहुत सही किया कि आपके यहाँ भी आपको 2-3 टायर मेंटेन करने पड़ेंगे. ये नहीं कि जो भी SSC ने डॉक्यूमेंट दिया विदाउट फोल्डेड हैंड एंड विदाउट फोल्डेड आईज वी कैन फाइल विद द डिपार्टमेंट. अब ये नहीं करना होगा जो भी SSC ने डॉक्यूमेंट दिया, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते थे उसमें फ्रंट एंट्री भी चलती थी, बैकडोर एंट्री भी चलती थी, सब कुछ चलता था. बट अब वो सब टैक्टिक्स बेकार हो जाएगी, वो कोई भी टैक्टिक अडॉप्ट नहीं हो पाएगी. सो वंस व्हाट हैज बीन पार्टेड फ्रॉम योर हैंड वो फाइनल हो जाएगा. इसीलिए जो भी कुछ फाइल करे, राजेश मेहता जी ने बहुत सही किया है कि उसको 2-3 बार जांच ले और उसके बाद फाइल करे. वैसे तो राजेश जी ने हमें बहुत कुछ बताया, उसमें से तो मैं एक ड्रॉप भी आपको नहीं बता सकती हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा डेलिब्रेशन दिया है एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट टू हिम. विद दिस रिमार्क्स एंड with these few tips, I must say that हमारे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस भी बढ़ जाते हैं. हो सकता है कि पहले 1-2 साल में हम लोगों को भी यूज टू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर न्यू स्कीम है. अभी तक हम सिर्फ अपीलें, हम रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करते थे या तो अपीलें ऑनलाइन फाइल करते थे, बट हियरिंग हमारी फिजिकल हियरिंग हुआ करती थी. तो हमें अभी तक यही है कि यदि हम पर्सनली आमने सामने बैठेंगे
तो ही हम समझा पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझा पाएंगे। पर ये कुछ हद तक मुझे सही भी लगता है। कई बार क्या होता है कि हम उतनी बातें लिख नहीं पाते हैं, पर जब हम आर्ग्यू करते हैं तब क्रिएटिविटी होती है और हम उसमें बहुत कुछ कह पाते हैं, न्यू आइडियाज क्रॉप अप होते हैं, न्यू लॉ पॉइंट दिमाग में आता है। वो हो सकता है कि फेसलेस में हम इतना सब कुछ ना कर पाए। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें अपने सबमिशंस भी वाइड रेंजिंग बनाने पड़ेंगे कि ऐसा कुछ हमारे से छूट ना जाए, ताकि ये ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात आती है कि दिस हैज नॉट बीन टेकन इन योर प्लीडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने लोअर अथॉरिटी के सामने ये आर्ग्यू कहाँ किया है? तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने लोअर अथॉरिटी के सामने सारे आर्ग्यूमेंट्स प्लीडिंग में लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, पर राजेश मेहता जी को मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि सर आपने जो बताया वो हम सबके बेनिफिट के लिए तारीफे काबिल है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और अब प्रोग्राम को फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें और मीटिंग को फॉर्मली कंक्लूड करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। धन्यवाद। हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल कड़क। कड़क साहब, ठीक, धन्यवाद। ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है आप लोगों के लिए कि पिछली बैठक में मैंने इस विषय को रखा था कि जो नया युग आ रहा है उस पर हम सभी लोगों को सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है, और वो विषय इस बैठक में, इस वेबिनार में रख लिया गया। एक बात और हम कहना चाहते हैं, मेहता साहब को धन्यवाद के साथ साथ आभार। उन्होंने जैसे कि एक अच्छे टीचर की तरह से हम सारे लोगों को पढ़ाया और बताया। एक चीज और भी स्पष्ट रूप से है, साबित होगी कि अब जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जिसके मन में ये उकलाहट थी या बौखलाहट थी कि ये कैसे होगा, उसको अब इस चीज से एकदम निश्चित हो जाना चाहिए कि अब वो सेटिंग वाला जमाना खत्म हो गया। आने वाले समय में वही प्रोफेशनल सरवाइव कर पाएगा जो एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ तैयारी करके अधिकारी के सामने रखेगा। इस ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार आप सारे लोगों का। धन्यवाद विशेष रूप से ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पूर्व अध्यक्ष जी का। देखिए आज कितनी अच्छी बात ये रही इस कार्यक्रम की कि कार्यक्रम आरंभ हुआ माँ सरस्वती की वंदना से और फॉर्मल इनॉग्रेशन साक्षात गणेश जी ने किया। हम लोगों के क्षेत्र में पुरोहित का होना अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है, तो साक्षात गणेश पुरोहित जी ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती है। साथियों, अपनी बात आप सारे लोगों के प्रति आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम दो बातें और रखना चाहते हैं कि हम प्रांतीय स्तर के संगठन और राष्ट्रीय स्तर के संगठन के लोग जब साथ साथ मिल करके, अभी मेहता साहब ने ये बात बताई, ये बात हम लोगों को केंद्र सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। जो हमारी व्यवहारिक असुविधाएं होंगी उसके बारे में हम दोनों लोगों को सामूहिक रूप से ये प्रयास करना होगा ताकि जो आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न हो उसका निराकरण हो सके। और जो मेरी आदत है, मैं अपनी बात एक पंक्ति से समाप्त करना चाहता हूँ कि हाथ बढ़ा कोशिश कर भाई, हाथ बढ़ा कोशिश कर भाई, ऐसा भी हो सकता है अपना आंगन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो सकता है। तुमसे मतलब नहीं है लेकिन फिर भी मिलकर दुआ करो, अरसे से बीमार पड़ोसी अच्छा भी हो सकता है। हम सब लोगों को एक साथ मिल करके एक उंगली की भांति नहीं, एक मुट्ठी की तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सारे लोगों का, जिन लोगों का मैंने नाम लिया और जिन लोगों का मैंने नाम नहीं भी लिया, सारे लोगों के प्रति विशेष आभार धन्यवाद। विशेष रूप से मैडम बंसल के लिए कि जब वो कोई बात रखती हैं तो ऐसा लगता है कि एक गार्जियन, परिवार का मुखिया जो है बड़े प्रेम से किसी बच्चे को समझा रहा है। बहुत बहुत आभार धन्यवाद। बैठक समाप्त की जाती है। फिर मिलेंगे हम लोग नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ। सादर नमस्कार, सभी लोगों को वंदन नमन, एक बार पुनः सबका अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी। और आप इसके साथ ही मीटिंग समाप्त की जाती है। अब पुनः मिलेंगे अगले शनिवार शाम को स्पेशल टॉक के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।